Assalamu alaikum everyone. Welcome to the online session of clinical examination for FCPS Cardiology 2020. My name is Dr. Hasib Raza and I am working as Cardiac Electrophysiology Fellow at the National Institute of Cardiovascular Diseases, Karachi. Today, the topic of discussion is short case of pulmonary stenosis. And for this discussion, I have invited Dr. Noor Dastagir. Dr. Noor is MRCP and FCPS cardiology. He is member of American College of Cardiology as well. He is coronary and peripheral interventional cardiologist and currently he is working as assistant professor of cardiology at Jinnah Hospital, Lahore. So let's greet our speaker. Assalamu alaikum Dr. Noor, how are you? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हसीब? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। एक बार फिर हमने आपको ज़हमत दी और आपने जो है ना वो हमें मायूस नहीं किया। नहीं, इट्स ऑलवेज एन ऑनर जी। बिल्कुल, मैं तो लास्ट टाइम भी कहा था, आपको जितना अप्रिशिएट किया जाए इस एक्टिविटी के लिए वो कम है। एंड डेफिनेटली whoever is being a part of it, it's an honor for them because it's all about you, I think, at this time. Thank you so much. I will request you to start your presentation, and if there is any murmur you want to आप सुनवाना चाहते हैं अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स को तो शेयर करते वक्त टिक जो आता है ऑडियो शेयर करने वाला आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो वो बिल्कुल ऑफ ज़रूर कर कोर्स। नहीं, लीजिएगा वो और फॉर लास्ट द में पता चल गया। पार्टिसिपेंट्स एज यूजुअल आपके सवालात के जवाब हम एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन डॉक्टर नूर से ज़रूर लेंगे तो क्वेश्चन एंड आंसर पैनल के अंदर अपने क्वेश्चंस आप पुट कर दें आई विल कलेक्ट देम एंड आई विल आस्क एट द एंड ऑफ द presentation. So Dr. Noor, please you can start. Mic is over to you. बिल्कुल जी, थैंक यू। चलें जी, शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल माय फेलो colleagues, any seniors who are with us today, and again, most importantly, the future consultants of tomorrow. I want to welcome you all. Today, the topic of discussion is pulmonary short case, pulmonary stenosis ka short case. I'm actually not very excited about this topic because it's not a very frequently asked topic in the examination. Actually, in the past couple of years, like 4-5 saal mein, I have just seen one case of pulmonary stenosis Lahore Center mein that's been put to the candidates. It's a rather infrequently asked and assessed subject, and दूसरा ये है कि there's not much to discuss about it. So I'll try to go about a broader discussion, not just focusing on pulmonary stenosis, because while I was actually making this presentation for you, so I was going over the guidelines and whatever information that is there that I can provide to you guys. So उसमें there's not much actually. Guidelines जो आपकी लास्ट अपडेटेड हैं 2014 की जो वैल्वुलर गाइडलाइंस हैं उनमें there's one page given to pulmonary stenosis. 2017 के अपडेट में there's half a page given to it, and it was discussed in 2018's congenital heart disease guidelines, and that also gave it 1.5 page. So there's not much to pulmonary stenosis. We'll go over it, and obviously since the topic is short, so I've collected all the details that could be there. So we'll go over them, and also we'll sort of discuss a differential of different murmurs that can be heard, या diagnostic difficulties clinically जो आपको हो सकती हैं listening to the pulmonary area. So we'll also discuss them as we discuss pulmonary stenosis. If there's any question, as usual, so we'll definitely, I'd like to have the questions and an open discussion, and at the end, so we can dive into it. Plus ये कि last session में एक question पूछा गया था जिसका answer नहीं हो पाया था, dimensionless index. मतलब I read up upon it, or I'll also discuss it at the end in this session as well. तो शुरू करते हैं. Let's go ahead with it. So before
we go to the theory of the pulmonary stenosis and go discuss it objectively, let's discuss the clinical part of it first. You have मैं short case की basic tips and how to approach a short case already discuss कर चुका हूँ, so I'm not going to go over it again. So considering that all of you have gone over that session and are now well versed with how it's going to go, so you reached your short case station now, and अब ये most likely pulmonary stenosis का अगर case है, तो what is it going to be and how you're going to approach it? So there's a patient, he's going to be lying there, and as I mentioned before कि सबसे डॉक्टर पहले नूर, सॉरी टू कट यू, जी आप अपनी स्लाइड्स आगे पीछे कर रहे हैं? नहीं मैं अभी नहीं कर रहा, it's just basically there, हमने रोकी हुई है. I'm just discussing the clinical presentation of ओके it ओके, first. आई थॉट कि शायद मेरी तरफ से कोई मेरे एंड कोई प्रॉब्लम है कि मैं कंफर्म कर लूं ताकि बाकियों के लिए प्रॉब्लम ना हो. ठीक है जी, बिल्कुल सही. नहीं, I want to go over the clinical aspect first, और फिर I'll discuss the entire case objectively. ओके ओके. So we have a patient and he's lying there, and सबसे पहले what you're going to do is obviously you're going to meet your examiners. They might or they might not tell you to read the command, but you must read the command. And वो कुछ भी हो सकती है, auscultate the precordium, examine the precordium, the cardiovascular system. So you're just going to proceed with that. You're going to introduce yourself, and again, number one thing is that you're going to inspect the patient. आप आराम से you can start near the patient or you can start at the foot end, but you have to use both the opportunities. जब आप foot end पे जाते हैं तो you get a unique opportunity देखने के लिए कि symmetry कैसी है. There's something जो कि आपको sort of bird's eye view से बेहतर नज़र आ जाती है. So you go and do that over the inspection at the foot end, and then you come close and you really look at the chest. आप side पे देखें, right side पे देखें, left पे देखें, look for any there could be a scar mark that you could be missing. There could be a chest deformity that you could be missing, और कोई भी, let me tell you, if there's any obvious finding inspection पे and you fail to tell that, तो examiners उस पे बहुत ज़्यादा critical होते हैं. They mind that, and वो थोड़ा सा unforgiving होता है कि अगर if there's any obvious inspection finding, इसकी एक example sorry हट के दे रहा हूँ कि जैसे long case में अगर किसी के हाथ पे radial bandage बंदी हुई है and you don't tell the examiner that, and you can make out कि patient का angiogram हुआ हुआ just by seeing that bandage, तो उस पर काफ़ी नेगेटिव मार्किंग होती है. सिमिलरली इंस्पेक्शन के अंदर इफ देयर सम वेरी ऑब्वियस थिंग एंड यू फेल टू एक्नॉलेज दैट एंड टेल द एग्जामिनर, तो वहाँ पे वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं. सिमिलरली इंस्पेक्शन पे आपको कोई विजिबल पल्सेशन नज़र आ सकती है. ऑब्वियसली इसमें वी नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सर्जिकल स्कार मार्क्स, कुड बी अ कोइंसिडेंटल थिंग बट मोस्ट लाइकली नहीं होगा. स्ट्राया वगैरह भी मोस्ट लाइकली could or could not be there, they're not part of the case. As you move on, जब हम palpation करते हैं तो इसमें आपको apex beat जो है वो थोड़ी सी confuse कर सकती है. अक्सर patients में जिनमें RV heave आ रही होती है, often candidates do get confused with the RV heave. So you must remember that the apex beat is the most lateral and the most outermost part जहाँ पे आपको pulsation feel हो रही होती है. So you must learn to differentiate an RV heave from an apex beat. क्योंकि जब आरवी थोड़ा सा ज़्यादा हाइपरट्रोफी हुआ होता है तो कभी कभी वो ऐसे फील हो रहा होता है कि एपेक्स बीट बिल्कुल ही इनवर्ट शिफ्ट हुई है, विच इज़ नॉट द केस. एपेक्स बीट अपनी नॉर्मल जगह पे ही होगी. ये जस्ट थोड़ा सा आरवी हीव की वजह से थोड़ी सी कभी वो आपको ऐसी फीलिंग आती है. एंड देयर इज वन मोर थिंग, आरवी हीव की वजह से कभी कभी एपेक्स बीट थोड़ी सी आगे लैटरली डिस्प्लेस हो जाती है. दैट इज बिकॉज द आरवी हाइपरट्रोफी. यू ऑल्सो मस्ट कीप दैट इन माइंड. Similarly, so we're not expecting much in a case of pulmonary stenosis because left side obviously involved नहीं है. But जब आप next चीज़ जो palpation में आप करेंगे, RV heave देखेंगे, तो RV heave आपको बड़ी अच्छी इसमें मिल सकती है. Obviously जो case हम आपके लिए या लाएंगे या जो आपको एग्जाम में मिलेगा वो कोई mild probably case नहीं होगा. So उसमें finding obviously अच्छी आ रही होगी, तो उसमें it is expected कि patient का stenotic element मतलब probably ज़्यादा ही होगा, and RV heave होने के chances high हैं, so look out for that. Similarly, the next thing is आप auscultatory sounds के लिए देखेंगे S1 and S2, probably palpable इसमें नहीं होंगी. We're not expecting any sort of a pulmonary hypertension in these patients.
एंड लास्टली जो है इम्पोर्टेंटली आप जब थ्रिल्स के लिए देखेंगे तो यू माइट find a systolic thrill at the pulmonary area. So that is about the palpation. And then when you auscultate, you'll find a normal S1 because obviously nothing is going on with the mitral valve. The second heart sound में जब आप देखेंगे तो A2 component will be normal. The P2 component could be normal, but most likely जो फ्री प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है उसमें यही होगा कि P2 कंपोनेंट जो है इसमें थोड़ा सा सॉफ्टिश होगा या सॉफ्ट होगा. एंड इफ़ वो अगर आपको थोड़ा सा सुनाई दे भी रहा होगा तो इसमें P2 डिले होने के चांसेस हाई हैं. विल बी गोइंग ओवर द थ्योरी एंड डिस्कस इन डिटेल कि ये सारी चीज़ें किस तरह होती हैं, किन पेशेंट्स में आती हैं, किन में नहीं आती. बट इफ अ टेक्स्ट बुक सिवियर पल्मोनरी स्टेनोसिस की अगर हम केस की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो P2 could be delayed. So there's a widely split P2 and it's most likely soft. And similarly जो है आपको इसमें अगर तो valvular इसमें pulmonary stenosis है तो there's a high probability कि उसमें आपको systolic clicks मिल सकते हैं. So that is something that is very unique to a valvular pulmonary stenosis, which is not to be heard in RVOT obstruction or any supravalvular PS. So that is a differentiating point. So I hope everyone is clear regarding the general examination of pulmonary stenosis that is to be done when you approach this case. At the end of the discussion of pulmonary stenosis, so we'll run into an open discussion and we'll see कि pulmonary area पे और क्या murmurs हो सकते हैं, what's our differential diagnosis, and how do we differentiate them, and what sort of a discussion the examiner is going to have with us. So let's move on and see our pulmonary stenosis a bit more objectively. So अब this is जो मैं अगला सारा बताने जा रहा हूँ, this is entirely going to be a theoretical part जो आपके केस से related सारी examination findings थी that I've discussed, and any further जो actually आपसे एग्जामिनर इसमें ज़्यादा आपसे इंटरेस्टेड होते हैं ना पूछने में, वो भी मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि पल्मोनरी स्टेनोसिस इज सो इनफ्रीक्वेंटली देयर इन द एग्जाम, सो एक्चुअली देयर इज नॉट मच डेटा टू सी के एग्जामिनर्स क्या पूछते हैं. बट ये है कि एनी डिस्कशन रिलेटेड टू पल्मोनरी स्टेनोसिस इज मोर रिलेटेड टू the differential diagnosis at the pulmonary area and how it is differentiated from a subvalvular pulmonary stenosis to a supravalvular, and how is it different from TOF, and what's the valvular and all that. There are some questions related to its management and its sort of classification. So we'll go over that in detail. बाकी चीजें are just क्योंकि it's I'm now part of the whole thing, so I have to go over it. So please bear with me and just try to keep an open mind कि थोड़ा बहुत बस इसको absorb करें आप. Generally pulmonary stenosis is very well tolerated. That's what you have to remember. Mild to even moderately severe patients जो हैं, they will be asymptomatic. It's very well tolerated क्योंकि एक तो वहाँ पे थोड़ा सा flow के pressures कम है. It's a low flow sort of circulation. So patients इनका mild तो है ही है, even moderate है, moderate to severe वाले भी जो हैं वो अक्सर life तक asymptomatic ही रहते हैं. It's only the very severe या severe PS के patients जो हैं they experience symptoms like exertional dyspnea and fatigue, and in very very rare cases they might have syncope, or very rarely there has been cases of sudden death, but that's a very rare thing. Obviously क्योंकि जब pulmonary stenosis होगा तो it's understandable कि जो right side है that will be involved. The RV is going to get hypertrophied. Obviously it's going to have to work harder against stenosed valve. So RV को काम ज़्यादा करना पड़ेगा. It will ultimately get hypertrophied. The RA might get dilated. Ultimately this will all lead to some sort of dilatation of the jugular venous system and the entire venous system as well. So later on when the RV starts to fail, there can be pulmonary edema and what other symptoms we see in right-sided heart failure. Right. So
as we move on to its examination, तो examination में जब आप देखेंगे तो inspection में there's not much to be seen, and palpation में या inspection में ख़ास तौर पे अगर आप JVP को जब देख रहे हैं as part of your general physical examination, so there can be a prominent A wave obviously because RA pressures जो हैं वो बड़े होंगे. Palpation के ऊपर there can be an RV heave and similarly systolic thrill like we've talked about pulmonary area के ऊपर. The S1 will be normal, the P2 will be delayed. P2 इसलिए डिले होगी, you must understand this, क्योंकि आप जितनी चीज़ें अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे आपको याद रखने में उतनी कम चीज़ें होंगी ना. If you understand it, you don't need to memorize it anymore. So always try to understand the concept. And मेरी अपनी हमेशा any sort of talk that I have, I try my best कि चीज़ को explain करूँ ताकि याद रखने वाला component कम से कम हो. So क्योंकि valve stenosed है and हमारी जो closing, जो what we hear as basically heart sounds, they are basically closing clicks. So S1 is produced by the closure of mitral and tricuspid valve, and S2 is created by the closure of aortic and pulmonary valve. So aortic valve तो अपना time से जो है उसमें से ejection होगी and it will close timely. अब चूंकि pulmonary valve stenosed है उसमें से ejection जो है वो थोड़ी सी delay होगी, जाहिर है क्योंकि valve जब तंग है तो blood उसमें से निकलेगा slow और जब slow निकलेगा तो obviously फिर वो बंद भी देर से होगा. एंड प्लस वैल्व की कुछ मॉर्फोलॉजी भी ख़राब है, कुछ कैल्सिफाइड है, कुछ डिजीज्ड है, ईदर वेज तो वो बंद भी उस हिसाब से फिर देर से होगा और सिमिलरली P2 देर से आएगी. एंड चूंकि वैल्व इज नाउ डिजीज तो वो बंद भी मुश्किल से ही होता है, सो इसलिए P2 जो है वो सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है. एंड now when we're going to auscultate the murmur, so it's going to be a harsh crescendo decrescendo ejection systolic murmur which is going to radiate to the neck. and इसको आपने जो main differentiate करना है वो aortic stenosis से करना होगा. and while you're examining the patient तो obviously you will have the patient leaning forward bass सुनने के लिए. if you've done the mitral and the tricuspid area, for the pulmonary and aortic areas you will have the patient leaning forward. And whenever you have a murmur, so you will make the patient inspire, hold their breath, then expire and then hold their breath. And यही आपका difference आएगा aortic stenosis से कि इसका murmur inspiration में बढ़ेगा और aortic stenosis का murmur expiration में बढ़ेगा. And यही चीज़ जब आप करेंगे, demonstrate करेंगे और examiner को बताएंगे तो तभी justification होगी, वरना we see aortic stenosis so frequently and pulmonary stenosis is a very rare entity in the exam. So pulmonary stenosis banane ke liye you have to be 100% sure, and you have to back yourself up and you have to back your examination up, and the examiner must see कि आप किसी logic से पहुंचे pulmonary stenosis पे. Please mind it कि अगर आपने केस देखा हुआ है, किसी तरह आपको पता चल गया है कि ये केस pulmonary stenosis का है, प्लीज उसको ब्लाइंडली अटेम्प्ट ना करें. ये इस चीज़ का तो मैं लाइव विटनेस हूँ कि आई हैव सीन कैंडिडेट्स पल्मोनरी स्टेनोसिस के केस में पल्मोनरी स्टेनोसिस कह के फेल होते हुए बिकॉज दे हैड नो आइडिया कि वो पल्मोनरी स्टेनोसिस क्यों कह रहे हैं. दे डिडंट डू द प्रॉपर एग्जामिनेशन, दे कुडंट बैक देमसेल्व्स अप, द एग्जामिनर्स एंडेड अप फेलिंग देम. सीन कैंडिडेट्स जिन्होंने एओर्टिक स्टेनोसिस कहा है एंड दे ठीक है they were logically and theoretically coherent with their diagnosis. Obviously उनका diagnosis गलत था, वो inspiration और expiration वाली बात पे obviously गलत कह रहे थे, but उनका viva अच्छा हुआ. So a few percentage the examiner gave them the benefit of the doubt. AS कहने पे भी उनको पास कर दिया गया. and जिन लोगों ने blindly PS कह दिया था एक दो ने, वो नहीं हुए. बाकी the candidates who made PS logically with the proper examination and showed the examiner कि हम किस logic से पहुंच रहे हैं PS पे, so they passed. They obviously passed. As we move on, as the pulmonary stenosis gets more severe, तो widely split S2 हो सकती है और obviously P2 दूर चला जाएगा क्योंकि उसकी closure देर से होगी as compared to aortic valve which is undiseased. P2 जो है वो रिड्यूस या एब्सेंट हो सकती है एंड हमें जो सिस्टोलिक क्लिक हैं वो S1 के करीब जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं एंड द मर्मर की लेंथ बढ़ जाती है एंड मर्मर लेट पीक करता है, दिस सॉर्ट ऑफ फिनोमेना वी सीन इन एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट्स. ऑब्वियसली वो जो पल्सेस पार्वस या टार्डस है वो नहीं मिलेगी बिकॉज
this is circulation which is connected to the pulmonary arteries. We obviously can't access them. So जो हमारी systemic arteries हैं वो obviously सिर्फ aortic stenosis से ही होंगी. So we don't see the pulse वाली late peaking, but murmur में जो एक late peakingness है वो it can also be appreciated in severe pulmonary stenosis because of the same mechanics जो aortic stenosis की. So as the severity of the PS increases, the ejection murmur will increase in intensity, its duration will prolong, the peak becomes more delayed. ठीक है. अब इसमें हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि पल्मोनरी स्टेनोसिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किस तरह से हो सकता है. बट टू बी शॉर्ट, इसमें यह है कि पल्मोनरी स्टेनोसिस की दो तरह की मेजरली प्रॉब्लम्स होते हैं. एक तो ये कि वाल्व्स डिस्प्लास्टिक हो जाते हैं, उसमें हमें कोई इजेक्शन क्लिक नहीं मिलती, और उसमें there are some things that are different from what we see, what we're discussing on a normal basis for the textbook cases. So I've brought you again a murmur of pulmonary stenosis. It's basically a harsh ejection systolic murmur. Again, it's not comparable to what you can hear on auscultation in a real patient, but just to bring you a taste of how it sounds, about just an idea. So it's not going to be a low velocity murmur like what you hear in MR, not a very slight sounding murmur as you see in MS. It's going to be a harsh murmur as compared to aortic stenosis की जैसे murmurs होते हैं, because the pathophysiology is the same, we have the same stenotic valve. ठीक है, AS के कुछ ज़्यादा ज़रा harsh हमें मिल सकते हैं, but it will also be a harsh ejection systolic murmur. It won't be a pan-systolic, it will be an injection systolic murmur. ठीक है. अब let's dive into the theory a bit. Pulmonary stenosis के लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि it's basically going to fall under the territory of the congenital heart diseases. What we generally see हमारे, क्योंकि it's so frequent, the prevalence is so high of rheumatic heart disease, so हमारा जो number one है cause of the valvular involvement is the rheumatic heart disease, which is not the case over here. आपकी rheumatic heart disease just constitutes about 2% of all the cases of pulmonary stenosis. So pulmonary stenosis is generally considered under the forte of congenital heart diseases, and rather it forms almost about 10% of the total cases of congenital heart disease. तो जितने भी congenital heart diseases के patients आते हैं, उनमें से about 10% pulmonary stenosis के cases होते हैं. And recent जो इसकी actually guidelines आई हैं, वो भी आपको congenital heart diseases की guidelines में मिलेंगी, if you want to go over them. वैसे I have included in this presentation, so I will also share this one. And if you get this, I don't think pulmonary stenosis आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है. Just read what I've given in this presentation. So as we move on, so pulmonary stenosis can be of three types. It can be a valvular case, which is the case in most of the times, and most likely pulmonary stenosis का जब आपको case अगर आता है, तो it will probably be valvular because उसकी frequency वैसे high है, तो वही case मिलने का chance ज़्यादा है, और probably exam में आने का भी chance ज़्यादा है. Subvalvular को हम RVOT obstruction भी कहते हैं. This is what we sort of see in TOF. We will dive into that discussion towards the end. How do we differentiate these two? And thirdly, there is the supravalvular obstruction, which is involving the pulmonary arteries. So these are essentially three types of pulmonary stenosis that we have. And by default, when we talk about pulmonary stenosis, we're talking about the valvular pulmonary stenosis. So it comprises, as I've said, 10% of all the congenital heart diseases. Typically, generally the valve commissures are partly fused. Commissures partly fused हो जाते हैं, leaflets thin, और जब तक pliable होते हैं, तब तक इसकी conical सी shape बन जाती है, और obviously narrow central orifice हो जाता है. I'll just dive back to the start of my presentation, जहाँ पे मैंने एक छोटी सी picture लगाई हुई थी. If you just see it,
तो अगर आप देखें तो नॉर्मल वाल्व लीफलेट जो है वो किस तरह ओपन होता है, और एक स्टेनोज्ड और थिकन्ड पल्मोनरी स्टेनोसिस का जो वाल्व है वो किस तरह का होता है. सो द पिक्चर इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इसको देख के आई थिंक बड़ी अच्छी इमेज ज़हन में बन जाती है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड इट हेल्प्स यू विजुलाइज कि क्या प्रॉब्लम है एंड why the things are happening जो हो रही हैं. So that is the normal, yeah, the more frequent sort of the involvement, जिसमें commissures partly fuse हो जाते हैं, leaflets thin होते हैं, और एक conical या dome shape structure बन जाता है जिसकी narrow सी orifice होती है. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगा कि कभी भी आपने कोई फॉर एग्जांपल ये पानी का जो पाइप होता है वो आपने देखा हो और बचपन बड़ा करते थे, तो उसको अगर आप थोड़ा सा प्रेस करें तो बड़ी जो उसकी जेट स्ट्रीम है वो बड़ी जोर मतलब थोड़ी प्रेशर से निकलती है, थोड़ी दूर जाती है, एंड यू सॉर्ट ऑफ फील द प्रेशर सॉर्ट ऑफ इंक्रीज जब आप उस पाइप के ओपनिंग को थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं. दैट इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर कि जब इसका ओरिफिस थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है. जब प्रेशर बढ़ जाता है तो अगली पल्मनरी आर्टरीज में एक हाई प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो पल्मनरी आर्टरीज हैं आगे वाली वो डायलेट हो जाती हैं. तो इवन दो कि वाल्व स्टेनोज्ड है, लेकिन अगली जो पल्मनरी आर्टरीज हैं उनमें आपको डायलिटेशन मिलती है. सो यू गेट अ पोस्ट स्टेनोटिक पल्मनरी डायलिटेशन. एंड वेरी वेरी सिवियर केसेस में होता है कि फिर मतलब ओलिगीमिया स्टार्ट हो जाता है. सो ये चीज़ थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है. आई होप आई हैव क्लियर्ड इट. अगर नहीं किसी को क्लियर हुई तो प्लीज लेट मी नो इन द क्वेश्चन एंड आंसर्स. आई विल गो ओवर इट अगेन, बट ये समझना आपके लिए ज़रूरी है बिकॉज एज अ डिफॉल्ट अगर आप सोचें तो यू वुड थिंक पल्मोनरी स्टेनोसिस के केस में ओलिगीमिया होगा और आपको पल्मोनरी वैस्कुलेचर बड़ा ऑब्स्क्योर्ड नजर आएगा, बल्कि ऐसा नहीं है. पल्मोनरी स्टेनोसिस के जनरली सिवियर, मॉडरेटली सिवियर टू सिवियर केसेस के अंदर वी हैव दिस पोस्ट स्टेनोटिक पल्मोनरी आर्टरी डायलिटेशन बिकॉज ऑफ दिस जेट इफेक्ट डायनामिक्स वी कॉल इट. एंड इस जेट इफेक्ट की बिल्कुल मिसाल वैसी वो पाइप के ऑब्स्ट्रक्शन की है. अगर आपने कभी नहीं देखा है तो वुड अर्ज यू कि आप जाएं, कोई भी पानी का पाइप है उसको थोड़ा सा उसका ओरिफिस जो है ओपनिंग को क्लोज करें अपने हाथ से, तो यू वुड सी के बाकी पानी बड़े जेट से निकलता है और थोड़ी सी प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करता है. एट ओनली वेरी वेरी डिलेड स्टेजेस, वेरी वेरी सिवियर स्टेजेस ये है कि जब फ्लो बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो फिर वो ऑब्वियसली जब ये जेट ही नहीं क्रिएट हो पाएगा तो फिर पल्मोनरी आर्टरीज विल स्टार्ट टू डिक्रीज इन साइज एंड हाइपोप्लास्टिक हो जाएंगे एंड ऑल दैट. देन यू विल स्टार्ट टू सी दैट hypovolemia of the pulmonary vasculature. So these are one of the valve types की या pulmonary stenosis की problems हैं, जिसमें ये हमने की कि valve commissures की बात है, and leaflets की बात है, and ये बात है. सेकेंड प्रॉब्लम ये हो सकती है कि 10 से 15% पेशेंट्स में जो वैल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस के हैं उनमें वैल्व्स डिस्प्लास्टिक होते हैं. ये वैल्व्स जो हैं इरेगुलरली शेप्ड हो जाते हैं, थिकन हो जाते हैं, और कोई थोड़ी बहुत ही कमिश्रल फ्यूजन होती है, एंड इनकी मोबिलिटी बड़ी रिड्यूस सी होती है. तो इन एनुलस ओवरऑल स्मॉल होता है, और जो सुप्रा वैल्वुलर पल्मोनरी ट्रंक है वो इसमें हाइपोप्लास्टिक होता है, क्योंकि इसमें वैल्व आप ऐसे समझें कि वो अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाते. तो वो जो एक स्टिफ स्टेनोटिक सा वैल्व था वो नहीं होता इसमें. इसमें वैल्व्स बेसिकली डिस्प्लास्टिक से होते हैं, मिक्सोमैटस टिश्यू होता है और ख़राब से हुए होते हैं. तो इसमें वो जो हाई प्रेशर है, वो जो हाई जेट है, वो जनरली क्रिएट नहीं होता, और इसमें आपका जो पल्मोनरी ट्रंक है वो हाइपोप्लास्टिक होता है. और पोस्ट डायलिटेशन और पोस्ट स्टेनोटिक डायलिटेशन इसमें अनकॉमन होती है. दिस इज द सॉर्ट ऑफ pulmonary stenosis we see in a unique percentage of patients of Noonan syndrome. So pulmonary stenosis के साथ अगर आपको कोई एक चीज याद रखनी है तो वो Noonan syndrome है. Noonan syndrome is one thing which has an association causing pulmonary stenosis. बहुत सारे syndromes हैं जो sort of cause different things. A lot of connective tissue disorders we know tend to cause AR. We know कि Williams syndrome है that sort of causes supravalvular AS, and इस तरह की हर different syndromes हैं. So pulmonary stenosis के साथ जो चीज associated that is Noonan syndrome. So whenever you know pulmonary stenosis, just keep Noonan syndrome at the back of your head. And उसके साथ भी जो हमारे पास आएगा वो ये dysplastic valve वाली टाइप का pulmonary stenosis आएगा. Moving forward,
तो subvalvular PS जो है that is obviously due to a narrowing of the infundibular या subinfundibular region जिसको हम RVOT कहते हैं, and that is what we see generally in TOF के patients, and that's about it. Supravalvular में obviously we have the pulmonary vasculature की stenosis, and it can happen at the level of the main pulmonary artery या फिर आगे जाके भी हो सकती है. Generally इतने ज़्यादा ये symptoms cause नहीं करती, इतना problem नहीं करती, but अगर हो तो pulmonary artery stenting is one thing that can be offered to these patients, but that's a very very niche sort of an area, and we're talking about very rare territory right here. So मतलब अगर आप इसके बारे में नहीं जानते या नहीं बताना चाहते या नहीं mention करते, I don't think कि कभी भी ये पूछा जाएगा. So we've discussed the causes mainly. इसमें pulmonary stenosis की जो main cause है that is part of the congenital heart abnormality syndrome. Secondly, rheumatic heart disease has some sort of a very low contribution, 2% है, और उसमें भी mitral, aortic सारा कुछ involve होता है, फिर जाके कहीं pulmonary की involvement भी हो जाती है. That's a very very less frequently involved valve, and यही हम अपनी practice में देखते हैं कि बड़ा कम pulmonary stenosis देखने को मिलता है. In my clinical practice, I've just ever come across one patient of pulmonary stenosis. So we do a lot of echoes, we see a lot of patients, but pulmonary stenosis, valvular बड़ा कम actually इसी वजह से देखने को मिलता है. A lot of these patients are actually adult congenital cardiologists या उस domain में ज़्यादा चले जाते हैं. Thirdly जो है वो carcinoid के साथ है, क्योंकि as you know carcinoid right side को involve करता है because it's sort of a condition जिसमें कि venous drainage है and venous spreading होती है, so it sort of comes to the right side of the heart, and obviously वहाँ पे ये deposit होते होते जो है can cause some sort of stenosis. And lastly Noonan, as I've already mentioned. So prognosis क्या है? Like we've discussed के mild, moderate, severe, moderately severe तक patient जो हैं वो तो asymptomatic ही रहते हैं, and generally survival is the rule. So any patient who has a congenital भी उसको अगर mild PS है या moderate है, moderately severe है, तो कुछ भी नहीं होगा. You actually won't even find out unless के coincidentally find out होगा. It's only the severe pulmonary stenosis and the critical stenosis in the neonates जिसमें जाके कोई problem होती है. तो mild PS की तो actually unaffected से undistinguishable है prognosis, the same progression of the disease, मतलब same है, आप उनका कोई life expectancy में difference नहीं है. And इसमें generally ऐसा भी नहीं होता कि mild PS आगे जाके severe हो जाए, rather actually age के साथ साथ pulmonary valve का orifice बड़ा होता है, जब body growth बेहतर होती है तो valve actually और खुल जाता है. It's only the severe PS which can over time cause problems. So अभी आपको आ गया pulmonary stenosis का केस, तो obviously once you've diagnosed it, तो कुछ basic discussion आपसे differentials की होगी, and obviously most likely जो questions इसमें बनते हैं वो यही 2-3 हैं कि आपसे पूछ सकते हैं examiner के how do you want to proceed या how do you want to investigate this patient. So as always, as with all the cases, we want to say basics हम start करते हैं, we want to do the ECG, and ECG में आपको क्या मिलेगा? Obviously जितना severe pulmonary stenosis है वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली उतना ज़्यादा RVH कॉज करेगा, एंड जितना ज़्यादा RVH कॉज करेगा हमें उतने ही ज़्यादा ECG पे फीचर्स मिलेंगे. सो विद माइल्ड PS एज वीड एक्सपेक्ट के ECG नॉर्मली होगी या बड़ा ही कोई माइल्ड सा राइट एक्सिस डिविएशन हो सकता है. मॉडरेटली सिवियर PS के साथ राइट एक्सिस डिविएशन मिलेगी और सम सॉर्ट ऑफ राइट प्रीडोमिनेंस मिलना स्टार्ट होगी, V1 में थोड़ी सी R वेव बढ़ना स्टार्ट होगी. मेरी सिवियर PS के साथ जब आपका RVH बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट साइड डोमिनेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें V1 में R वेव प्रीडोमिनेंटली मिलना स्टार्ट हो सकती है. सो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ एन ECG ऑफ अ रादर सिवियर केस, जिसमें हमें इफ यू नोटिस के आपकी राइटवर्ड एक्सिस शिफ्टेड है, AVR, AVF, आपका rightward lead 3, all the right sided channels are increased in amplitude, lead 1 और AVL आपकी downwards हैं, that means कि axis is going towards the right. आपकी V1 में R wave आ रही है, V6 में S wave आ रही है, and similarly जो strain जिसको हम कहते हैं कि asymmetrical C T wave inversion आपको मिल रही है in the right sided leads जो V1, V2, V3 हैं, जो RV वाली side को देखती हैं. So we're getting sort of an RV strain, we're getting RVH के पैरामीटर्स के V1 में R wave बढ़ी हुई है, V6 में S wave आ रही है. So this is an ECG we would expect to see in a rather severe case of pulmonary stenosis जिसने RVH काफी considerable हद तक करवा दिया हुआ है.
So next we want to do an X-ray. X-ray की findings मैं बता चुका हूँ कि generally even with mild valvular PS हमें main और right और left pulmonary arteries थोड़ी सी poststenotic dilatation मिलती है. Overall the heart size is usually normal unless कि जब right side थोड़ी सी आपकी हाइपरट्रोफी हो जाए या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाए, आरवी का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाए, आरए का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो वी कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ राइट साइड की थोड़ी सी डोमिनेंस मिल सकती है. और इसमें भी आप देखें तो हार्ट साइज जनरली नॉर्मल, थोड़ी सी पल्मोनरी वैस्कुलेचर थोड़ा सा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है. कभी कभी एपेक्स थोड़ी सी उठी हुई आपको लग सकती है और कभी कभी राइट एट्रियल शैडो थोड़ा सा प्रोमिनेंट होके राइट साइड थोड़ी सी प्रोमिनेंट लग सकती है. दैट्स अबाउट इट. Echo में is the mainstay of the investigation, जिसमें आप diagnose करेंगे, जिसमें आप इसको stratify करेंगे if it's mild, moderate and severe, and obviously that's where you're going to decide the management. So two-dimensional echo अपनी करनी है, इसमें आपको thickening of the valves मिलेगी, characteristic doming मिल सकती है of the non-dysplastic valves, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिल सकती है. आरबी का फंक्शन आपने देखना है, उसके पैरामीटर्स जो हम देखते हैं आरबी एसटीडी एंड टैप्सी से, आरबी साइज, उसका फंक्शन, राइट एट्रियल साइज, और ये सारी चीज़ें हमने देखनी है. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एन एको जिसमें आप देखेंगे कि अगर इसमें जैसे कि मार्क्ड है कि ये आपको वाल्व जरा डोम शेप हुए हैं और ऑब्वियसली स्टेनोटिक सा इसका ओपनिंग है और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डायलेटेड है, और this is about it. बाकी पर different views. I didn't want to go too much into echo. That can be a separate topic on its own. So this is just the key point that I've highlighted. Cath is not needed for diagnosis. It's actually class 3 recommendation कि आप pulmonary stenosis diagnose करने के लिए patient की cath करें. So that is not to be done routinely. Only and only अगर आपकी clinical findings और echo match नहीं कर रही, there's some sort of discrepancy, so you can do a pullback of the pulmonary catheter. आप catheter को pulmonary artery में ले जाके वहाँ का gradient देख के और वापस उसको pull करके RV में लाके, तो you can check the difference of the pressures and देख ले सकते हैं कि कितना gradient है. What's the difference of the pressures between RV, OT and the pulmonary artery, and that will sort of tell you कि कितना ज़्यादा gradient बन रहा है. Obviously जितना gradient होगा उतनी ज़्यादा stenotic element होगा. So it's not to be done routinely. This is the only page in the 2014 and 2017 guidelines जो updated valvular की हैं, जिसमें we have gone over, आपने written exams दिए हैं, या if you've gone over the guidelines, so you know कि हर valvular pathogenesis में there are 4 stages. We have A, B, C and D. So इसकी A and B obviously we're not considering at all, क्योंकि as we've said mild and moderate को तो भूल ही जाएं आप. They don't need to be seen, they don't need to be followed up, there's nothing to be done about them. We are only concerned with the severe PS. Severe PS में obviously stage C and symptomatic stage D हैं. So valve anatomy में आपको thick and distorted valves मिल सकते हैं, calcified मिल सकते हैं, doming मिल सकती है. बाकी आपको और चीज़ें RVOT narrowing इस तरह की चीज़ मिल सकती है. और severe की अगर हम बात करें तो इसमें gradient 64 से ज़्यादा होगा. We'll go over the classification, अगली आगे एक slide आ रही है. And hemodynamic consequence में यही है कि RVH हो जाएगा, RV and RA enlargement हो सकती है, and again post-stenotic enlargement of the main pulmonary artery as we've discussed. Symptoms नहीं भी हो सकते and होने को हो भी सकते हैं as we've discussed. So classification ये है इसकी. This is the newer classification. इसको याद कर लें. 2-3 चीज़ें pulmonary stenosis में याद करने वाली हैं, जिसमें से ये एक की स्लाइड है कि mild is, and we are generally we talk of the mean gradients. इसमें we're talking about the peak gradient. ठीक है, तो ये ज़हन में रखें. अगर 36 से कम peak gradient आ रहा है, ये वही इसी व्यू में हम शॉर्ट एक्सिस व्यू के अंदर इसी वाल्व के ऊपर कंटिन्यूस वेव डॉपलर डालते हैं, तो वी गेट द सॉर्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन दैट. एंड उसमें अगर 36 से कम है तो इट्स माइल्ड, 36 से 64 इज मॉडरेट, एंड एनीथिंग अबव 64 इज गोइंग टू बी सिवियर. ठीक है, सो ये वैल्यूज आपको याद रखना ज़रूरी है. इनिशियली जो पिछली गाइडलाइंस थी या दे वर एक्चुअली क्वाइट ओल्ड, and this is the sort of value a lot of you must have in your head, yeah, minds, yeah. Generally a lot of people are have this when you discuss with them कि 50 का कट ऑफ है कि 50 से ज़्यादा अगर प्रेशर ग्रेडियंट हो तो उसको इंटरवीन करना है. So that is
old now. The newer classification is 36, 36 to 64 and 64 above. So guidelines आपकी 2018 की जो recommendations हैं वो ये कहती हैं कि any patients जिसको moderate या severe, so we're considering any person जिसका 36 से gradient ज़्यादा हो, moderate और severe category में हो, और पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हो जो किसी और चीज़ से एक्सप्लेन नहीं हो सकते, पेशेंट को कोई और वैल्वुलर प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी किस्म का और प्रॉब्लम नहीं है, एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस ही है, उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, साइनोसिस या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है, तो उसकी बलून वैल्वुलोप्लास्टी करना क्लास 1 रिकमेंडेशन है। अब ये चीज़ याद रख लें कि बलून वैल्वुलोप्लास्टी इज़ द नंबर 1 थिंग। अगर तो पेशेंट की बलून वैल्वुलोप्लास्टी नहीं हो सकती, ही इज इनएलिजिबल या फेल हो गई है, तो फिर सर्जिकल रिपेयर करना भी क्लास 1 है, लेकिन ये याद रख लें कि दैट इज अगेन अ सेकेंडरी प्रायोरिटी। इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि पेशेंट्स हु आर इनएलिजिबल और हु हैव फेल्ड बलून वैल्वुलोप्लास्टी, सिर्फ सर्जिकल रिपेयर आपने उनका करना है। नंबर 1 चीज बलून वैल्वुलोप्लास्टी है कि आप परक्यूटेनियसली जो है वो एज इट सीम्स बाय इट्स नेम, आप बलून से वैल्व को जो है वो थोड़ा सा बलून एक्सपैंड करके तो वैल्व का साइज ओपन कर दें और उसका फ्लो बेहतर करें। अगर नहीं हो सकता तो ओनली देन गो फॉर अ सर्जरी। एंड सेकेंडली, इन अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और उसको सिवियर वैल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो उसकी इंटरवेंशन करना क्लास 2A है, कि अगर आपको मिल ही गया है कि सिवियर अभी सिम्प्टोमेटिक नहीं भी है और आप फिर भी बलून वैल्वुलोप्लास्टी कर देते हैं तो वो की जा सकती है। इट्स गोइंग टू बी अ 2A रिकमेंडेशन। फॉलो अप में आई डोंट थिंक कि आपसे कोई भी पूछेगा, बस ये याद रख लें कि पेशेंट का जो विजिट सिवियर में है कैटेगरी में वो बस ईयरली है, एक्सेप्ट कि आउट पेशेंट विजिट का 6 मंथ्स याद रख लें। आई इफ आई वाज द वन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम तो आई वुड जस्ट रिमेंबर दिस कॉलम कि आप अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है पल्मोनरी स्टेनोसिस का, जस्ट हैव देम विजिट यू एवरी 6 मंथ्स एंड हर साल उनकी ईसीजी, उनकी एको एंड उनका एक्सरसाइज टेस्ट कर लें टू फॉलो देम अप। राइट, सो just before we close this topic, दो तीन छोटी सी बातें, let's discuss them quickly. कि अगर आपकी क्या फैक्टर्स हैं जो कि सब ऑप्टिमल आउटकम हो सकती है आपकी ये बलून वैल्वुलोप्लास्टी में, कि अगर इनिशियली ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा था दैट मीन्स कि स्टेनोसिस बहुत ज़्यादा थी, हाई पहली रेजिडुअल ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, वैल्व्स डिस्प्लास्टिक हैं, लाइक आई सेड कि डिस्प्लास्टिक वैल्व्स पहले ही ख़राब से होते हैं, उनमें इतना रूम नहीं होता कि आप उनको इन्फ्लेट करें और सही करें, क्योंकि वो वैल्व जैसे समझ लें कि स्ट्रक्चरली बड़े ख़राब से। So these are the factors जिनकी वजह से आपका आउटकम सब ऑप्टिमल हो सकता है इन बलून वैल्वुलोप्लास्टी। You might actually need to do a surgery for them. And obviously as expected कि अगर आप फॉर एग्जांपल पल्मोनरी स्टेनोसिस के लिए बलून वैल्वुलोप्लास्टी करते हैं तो उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, जो कि जब आप एमएस के लिए पीटीएमसी करते हैं तो तब भी हो सकता है। जब भी आप बलूनिंग करते हैं तो देयर इज वन बेसिक थिंग दैट कैन हैपन इज कि आप स्टेनोटिक को जब खोल रहे हैं तो इफ यू गो अ लिटिल ओवरबोर्ड या वैल्व्स दे डोंट गिव वे या दे गिव वे, तो वो उससे अल्टीमेटली यू कैन एंड अप कॉजिंग रीगर्जिटेशन इन द वैल्व। सो अगर पीएस के रिपेयर के बाद पीआर डेवलप हो जाए, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू गोइंग टू असेस द पीआर सिवियरिटी कि कितना है, माइल्ड सा है तो कुछ नहीं करना। ऑब्वियसली अगर पीआर ज़्यादा है, इट्स कॉजिंग आरवी डायलिटेशन, आरवी के फंक्शन को ख़राब कर रहा है, तो फिर ओनली देन वी गोइंग टू सी। सो अगर माइल्ड सा पीआर है और कोई आरवी इन्वॉल्वमेंट खास नहीं है तो जस्ट फॉलो देम अप। अगर मॉडरेट या मॉडरेट से ज़्यादा पीआर हो गया है, ऑब्वियसली जब ज़्यादा पीआर होगा तो वो आरवी लार्ज कराएगा। और अगर पेशेंट को सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो पल्मोनरी वाल्व फिर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बलून डायलिटेशन कर चुके हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन, सो पल्मोनरी वाल्व रिप्लेसमेंट वुड बी द वे टू गो। अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते तो फिर उसको फर्दर अपनी इमेजिंग से बेहतर आइडेंटिफाई करें। अगर तो प्रोग्रेसिव आरवी डायलिटेशन और आरवी डिसफंक्शन होता जा रहा है तो फिर वाल्व रिप्लेस करना क्लास 2B इंडिकेशन रहेगी। अगर नहीं हो रहा, पीआर ज़्यादा ही है लेकिन आरवी आपका टॉलरेट कर रहा है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बढ़ रही, तो आप फॉलो करते रहें। लेकिन अगर बढ़ रही है तो फिर यू उसको रिप्लेस करना क्लास 2B है। लेकिन अगर सिम्टम्स ही आ गए थे तो फिर क्लास 1 रिकमेंडेशन रहेगी।
Moving on, the last topic related to pulmonary stenosis is कि pulmonary stenosis का pregnancy किसी भी valvular disease का या किसी भी actually cardiac disease का हमेशा pregnancy के साथ एक आ जाता है, because you're very frequently consulted about pregnant patients as well, because वो एक completely different zone आ जाती है जिसमें आपको हर चीज़ थोड़ी सी differently assess करना और उसकी knowledge रखना भी ज़रूरी है. So I thought that I'll put this in as well, and we'll just discuss briefly कि pregnancy में क्या करना है. So as we know कि all stenotic lesions sort of get worse in the pregnancy, regurgitant lesions थोड़े से बेहतर हो जाते हैं. This is because of change in the hemodynamics during pregnancy. So इसमें भी यही होगा कि symptoms of PS worse हो सकते हैं. Generally, as is the case, mild moderate pulmonary stenosis will be tolerated well. अगर वो एसिम्टोमेटिक थे तो ठीक ही रहेंगे. सिवियर वाले भी जनरली ठीक रहते हैं अगर पहले ठीक थे, लेकिन इट्स ओनली दिस सिवियर एंड द वेरी सिवियर वंस दैट कैन गेट वर्स. तो उनको आपने कहना क्या है कि थोड़ी सी विगरस एक्सरसाइज अवॉइड करें, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ द प्रेगनेंसी. बलून वैल्वुलोप्लास्टी कर सकते हैं. दिस इज ऑब्वियसली टेकन फ्रॉम, क्योंकि रिसेंट गाइडलाइन में प्रेगनेंसी का टॉपिक नहीं डिस्कस हुआ. So this information is taken from the older guidelines, जिसमें obviously ये level 50 का दिया हुआ है. Like I've told you, the newer guidelines have changed that to the 36 to 64 वाला जो range and 64 above. So that's why the level of 50 is given over here. कि जिन पेशेंट में फिर 50 से ज़्यादा का ग्रेडियंट रहेगा और वो सिम्टोमेटिक हैं तो उनमें आप प्रेगनेंसी में भी बलून वैल्वुलोप्लास्टी कर सकते हैं. और obviously and the later half the pregnancy में preferred है. लेबर एंड डिलीवरी के लिए जो है, पेशेंट हु आर एसिम्प्टोमेटिक will tolerate labor well and there's no need to ask them to get a C-section. जिनमें severe valvular disease है, obviously we would need a high risk obstetric team and एक पूरी heart team approach sort of इनकी होगी, and they would decide के किस तरह लेके चलने. Antibiotic prophylaxis is generally not recommended for C-section, and सिर्फ जिनमें complex congenital heart disease हो फिर उनमें थोड़ी सी preferred है, but are not just for PS. So that's about it. So I think I've gone over all the basic things जो कि इसमें आपसे पूछी जा सकती हैं just related to PS. If there's anything that I've missed for pulmonary stenosis, so please let me know. We can discuss that. If I am not able to answer any questions, so I'll definitely get back to you on them. बाकी ये है कि let's dive into some questions, और after that we'll just have a brief discussion again on the murmurs that differential of diagnosis that is hovering around the pulmonary area. Okay, thank you so much, Dr. Noor. That was a wonderful presentation. Actually, everything was there, starting from the clinical situation to the treatment, और फिर उसमें जो हमारी जो स्पेशल पॉपुलेशन है उसके अंदर प्रेगनेंसी भी आपने उसको शामिल करके all in one presentation बना दी. That was very very nice idea and very excellent presentation. So moving on to the questions, and I have a couple of questions right here. So let me take the first question for you. Question is, how inspiration affects valvular and subvalvular pulmonary stenosis on auscultation? ठीक है, गुड. आप जितने ज़्यादा सब वैल्वुलर और वैल्वुलर के क्वेश्चंस पूछते जाएंगे ना, वो उतना इस एक्चुअली टॉक में बेनिफिशियल होता जाएगा. एक्चुअली मेरा जो वो डिफरेंशियल वाला टॉपिक है वो उसी में उतना ज़्यादा कवर होता जाएगा, तो दैट्स गुड. बेसिकली होता है कि इफ़ यू अंडरस्टैंड द हीमोडायनामिक्स इन इंस्पायरेशन, होता है कि जब इंस्पायर आप करते हैं, ऑब्वियसली नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर इज क्रिएटेड, तो सॉर्ट ऑफ द राइट साइड के जो चेम्बर्स हैं उसमें एक पुल सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो जाती है, एंड वी गेट सॉर्ट ऑफ अ लिटिल मोर preload in the right side of the heart. उसकी वजह से होगा क्या कि जब राइट साइड की फिलिंग ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली फिर उसमें से राइट साइड से निकलेगी भी थोड़ी सी ज़्यादा इंस्पायरेशन में, और आरवी उतना, इजेक्शन भी उतनी ज़्यादा ही होगी. तो इसमें एक्चुअली आरवी ओटी और वाल्व का कोई ताल्लुक नहीं है. इसमें सिर्फ स्टेनोसिस पे डिपेंड करेगा. अगर स्टेनोसिस ज़्यादा है, ऑब्स्ट्रक्शन उतनी ज़्यादा होगी, ग्रेडियंट उतना ज़्यादा होगा, मर्मर उतना ज़्यादा आएगा. बाकी इंस्पायरेशन में अगर आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन है या वैल्वुलर ऑब्स्ट्रक्शन है, उनमें इंस्पायरेशन कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी. दे विल बिहेव वेरी सिमिलरली. जो उनके डिफरेंसेस हैं इनेट, वो उसी तरह ही रहेंगे. अगर
RVOT ऑब्स्ट्रक्शन जैसी भी है वो इंस्पायरेशन में अपना एक सॉर्ट ऑफ ग्रेडियंट उसमें बढ़ेगा क्योंकि फ्लो ज़्यादा होगा, मर्मर ज़्यादा होगा, ग्रेडियंट ज़्यादा होगा. सिमिलरली वैल्वुलर अगर पीएस है उसमें भी यही होगा. तो बेसिकली इंस्पायरेशन में आप वैल्वुलर को और आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. दे विल बिहेव सिमिलरली इन देयर ओन वेज. Okay, great. The next question is from Dr. Maria. How we differentiate between the ASD click from pulmonary stenosis? Actually, I did not get the question. थोड़ा सा कोई एरर लग रहा है. इसको थोड़ा अगर रिफाइन करते हैं. एक्चुअली एएसडी में भी कोई क्लिक नहीं है. आप अगर सेकंड हार्ट साउंड के बारे में पूछना चाह रही हैं और उसकी Okay, let me ask Dr. Maria to rephrase his question. I will request Dr. Maria to ask again because मुझे समझ नहीं आ सकी कि actually आप पूछना क्या चाह रहे हैं. हाँ, अगर आप P2 की स्प्लिट की बात कर रही हैं तो आई वुड बी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट. एक्चुअली वांटेड टू. तो वो हम इफ दैट्स योर क्वेश्चन तो दैट्स गुड. प्लीज लेट मी नो. तो उसको कर लेते हैं जरूर. टिल देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक डॉक्टर इसको डिस्कस कर लें. कर लेते. गुड. ठीक है. सो लेट्स एक्चुअली थोड़ा सा कर लेते हैं इस पे डिस्कस यहीं पे. नाउ दैट दिस टॉपिक हैज कम अप एंड लोग पूछना भी चाह रहे हैं एंड दैट इज एक्चुअली मतलब मेरा पर्सनली जो ख्याल है कि अगर आपको पल्मोनरी स्टेनोसिस का केस आता है तो ये सब जो बातें मैं एक्चुअली मैंने डिस्कस की हैं ये पूछने के बजाय आपसे जनरली एग्जामिनर भी थोड़ा क्लिनिकल ज़्यादा पूछना चाहेगा और यही चीज़ें पूछेगा जब आप पूछ रहे हैं. और यही क्योंकि डिस्कशन के लिए इसीलिए छोड़ी यहाँ पे. तो वो यही है कि आपको पल्मोनरी एरिया के ऊपर जब आप कोई मर्मर सुनते हैं तो वो क्या पॉसिबिलिटीज उसकी हो सकती हैं. उसकी एक चीज़ तो यही कि जो हम सोच रहे हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकती है. द सेकंड थिंग कैन बी एन आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन एज यू डिस्कस्ड कि वही उसका डिफरेंशियल है कि पल्मोनरी स्टेनोसिस कैन बी एन आरवी आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन दैट वी सी जनरली इन कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस. अगेन जैसे टॉफ के पेशेंट्स में हम देखते हैं टॉफ में वैल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस नहीं होता. टॉफ में सब वैल्वुलर आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन होता है. दैट कैन बी द केस. एंड थर्डली जो यहाँ पे हमें मर्मर मिलता है वो एएसटी का है. अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए और बहुत क्लियर होना चाहिए वरना डायग्नोसिस सही नहीं बनेगा. राइट. तो सारे पैरामीटर्स को देख लेते हैं. सब में होगा क्या. लाइक आई सेड कि आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन और पल्मोनरी स्टेनोसिस बेसिकली एक ही चीज़ है. तो वो हीमोडायनामिकली एक ही तरह बिहेव करेंगे. आपको उसकी जो बाकी क्लिनिकल फाइंडिंग है एपेक्स बीट से लेके आरवी हीव से लेके बाकी सारी चीज़ें वो एक ही तरह की मिलेंगी क्योंकि वो बेस एसेंशियली सेम ही तरह एक्ट करेंगे. एएसडी के अंदर जो है वो थोड़ा सा क्योंकि हीमोडायनामिक्स डिफरेंट हैं तो एएसडी में आपको ज़रूरी नहीं है कि आरवी हीव मिले आरवीएच इतना मिले. डिपेंडिंग कि एएसडी कितना बड़ा है कितनी देर ऑब्वियसली देर से तो होगा. वी वुड एक्चुअली जो पेशेंट्स आपके पास आएंगे थोड़े से हो सकता है कि एडल्ट एज में हो. छोटे भी आ सकते हैं लेकिन जनरली चांस ही कि एडल्ट में हो. तो खैर ज़रूरी नहीं कि उसमें इतनी ज़्यादा आरवीएच और उस तरह की फीचर्स मिलें. तो असेंशली पैल्पेटरी फाइंडिंग्स आपकी आरवीएच ये जो टॉफ लाइक हैं और पल्मोनरी स्टेनोसिस में जनरली आपको सेम मिलती हैं क्योंकि असेंशली पैथोलॉजी सेम ही जगह पे सिर्फ वैल्व के ऊपर और नीचे इन्वॉल्व होने का डिफरेंस है. एएसडी थोड़ा सा इसमें डिफरेंट रहेगा. लेकिन हाँ जी एएसडी में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट नाउ. अगर आपको समझ नहीं आती तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछें. अगर आज आप ये कॉन्सेप्ट सीख के चले जाते हैं तो आपका एएसडी और ये पल्मोनरी स्टेनोसिस का ये मसला हल हो जाएगा. सो इसको इस तरह अंडरस्टैंड करें कि because these are rights are देखिए essentially ना ASD भी is going to culminate like a right sided lesion. और essentially जब हम ASD की बात कर रहे होते हैं क्लिनिकली तो we are talking about the left to right shunts. राइट टू लेफ्ट एक तो होते बड़े कम है एएसडी में और हो तो पेशेंट सिक भी होता है और ऑब्वियसली वो पेशेंट आने के चांसेस भी कम है. सो जो आपके पास पेशेंट आएगा जिसमें बड़ी क्लासिकल फाइंडिंग आ रही होती है वो लेफ्ट टू राइट शंटिंग वाला ही पेशेंट होता है. तो अल्टीमेटली वो भी आपकी राइट साइड को इन्वॉल्व कर देगा. लेफ्ट तो उसमें एसेंशियली अनअफेक्टेड ही रह जाती है. एएसडी में आपको कोई ऐसा मसला नहीं. अब हो क्या रहा है सब में आपका जो राइट साइड पे जो फ्लो है ना वो बढ़ा हुआ है. क्यों पल्मोनरी स्टेनोसिस में और आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन में आगे ब्लॉक्ड है तो इसलिए नहीं जा रहा. इसलिए राइट साइड सारी ओवर पूल हो रही है.
और एएसडी के अंदर लेफ्ट सारा ब्लड उठा के एलए आरए में फेंकी जा रहा है और आरए से आरवी में आ रहा है, फिर राइट साइड ओवरफ्लो हो रही है। तो एसेंशियली यू गेट सॉर्ट ऑफ सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब क्या होगा, सब में क्योंकि राइट साइडेड फिलिंग ज़्यादा हो गई है, उसकी इजेक्शन डिले हो गई है। जब इजेक्शन डिले हो जाएगी तो पल्मोनरी वाल्व देर से क्लोज होगा, तो अल्टीमेटली P2 जो है वो दूर हो जाएगी। A2 जल्दी ही बंद हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने नॉर्मल सर्किट में चल रहा है, नॉर्मल रूटीन में चल रहा है, नॉर्मल हीमोडायनामिक्स है, अपने टाइम से खुलेगा, अपने टाइम से बंद हो जाएगा। लेकिन चूंकि इन तीनों चीजों में राइट साइड पे फ्लो ज्यादा, पल्मोनरी स्टेनोसिस में भी वो उसने फ्लो ज्यादा देर तक करना है, फिर जाके बंद होगा। आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन में भी यही आगे तंगी है, ब्लड को निकलते हुए टाइम लगेगा। जब देर तक इंजेक्शन होती रहेगी तो चाहे वेल्वुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं भी है तब भी वेल्व देर बाद ही बंद होगा ना, क्योंकि इंजेक्शन तो लंबी हो गई है, क्योंकि स्टेनोसिस है। एएसडी में वैसे ही हमने वहां पे ब्लड ज्यादा कर दिया है तो भी राइट साइड पे इंजेक्शन ज्यादा हो रही है, तो इसलिए पल्मोनरी कंपोनेंट सबका डिले होगा। ठीक है जी। जब Great, इंस्पायरेशन great. होगी तो और डिले हो जाएगा, जब इंस्पायरेशन होगी तो राइट साइड का ब्लड और ज्यादा आ जाएगा, और ज्यादा आ जाएगा, और देर बाद निकलेगा और आगे चला जाएगा, मर्मर भी और बढ़ जाएगा। ये दैट मेक सेंस राइट, बिल्कुल लॉजिकल बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं मैंने अभी तक बताई। Agreed, आप agreed, डॉक्टर सीब agreed. एज मॉडरेटर ये थोड़ा सा इसमें मुझे बता नहीं, दें कि बिल्कुल दिस इज नहीं, नहीं, क्लियर, बिल्कुल ठीक। ये दिस इज क्लियर। क्लियर है और मैं भी देख रहा हूँ। अगर किसी को स्टिल कंफ्यूजन है तो वो बड़े फ्रैंकली हमें बताए, वी कैन गो ओवर इट अगेन। जी, तो अब P2 डिले तो सब में आएगी, सो वाइडली स्प्लिट P2 तो सब में आ जाएगी। अब बात कहाँ पे चेंज होती है कि ASD में फिक्स क्यों होगी, ये है सवाल, जो सही सवाल है। और यही आप यहीं पे समझ लें तो आपको ASD की भी फिक्स स्प्लिटिंग कभी नहीं भूलेगी, ना ही खराब होगी। इंस्पायरेशन में तो क्या हुआ कि ब्लड ज्यादा आ गया, जब ज्यादा आ जाएगा राइट साइड के ऊपर तो उसमें जो है आपकी राइट साइड की जब चेम्बर्स भर जाएंगे, राइट साइड की इजेक्शन लंबी हो जाएगी, P2 चली जाएगी दूर। तो अब आपकी A2 और P2 में फर्क आ गया, तो एक वाइड स्प्लिट आ गई जो कि सारे राइट साइड लीजन्स में आती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस में आती है, आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन में आती है, ASD में आती है, इवन अगर राइट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक होगा उसमें भी आ जाएगी। जब भी आपका राइट साइड देर से क्लोज होगा तो P2 आगे चली जाएगी। सिंपल हो गया। एएसडी में क्या होता है कि एक्सपायरेशन में हमें पता है कि लेफ्ट साइड का फ्लो थोड़ा सा इनकरेज हो जाता है, क्योंकि जब एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है और लेफ्ट साइड इजेक्ट कर रही होती है तो उसकी थोड़ी सी इजेक्शन तेज हो जाती है, तो उसकी जो है वो उस साइड पे प्रेशर बढ़ जाता है। सो अब जब लेफ्ट साइड पे प्रेशर बढ़ गया है तो क्या होगा कि वही लेफ्ट वाला प्रेशर जो है वो अगेन, ये अब चीज याद रखनी है कि हम उस एएसडी की बात कर रहे हैं जिसमें लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है, उसमें आपका ब्लड अगेन एलए से आरए में चला जाएगा, ड्यूरिंग इंजेक्शन भी चला जाएगा। पल्मोनरी स्टेनोसिस और आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन में तो नहीं जाएगा, उसमें राइट में इंस्पायरेशन हो गई तो राइट पे आएगा, तो राइट की P2 आगे चली जाएगी। लेफ्ट साइड की जब बात हो गई तो लेफ्ट साइड की इंजेक्शन डिले हो जाएगी। लेकिन एएसडी में क्या होगा कि चाहे राइट साइड पे ब्लड ज्यादा आके डायरेक्टली राइट पे चला जाए, या लेफ्ट पे आके और लेफ्ट से पुश होके फिर राइट पे चला जाए, क्योंकि एलए ने अपने पास ब्लड एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट नहीं करना। जब आप एलए को ज्यादा प्रेशर देंगे ना तो वो प्रेशर जब दबाएगा तो क्या होगा, ब्लड एलए से आरए में चला जाएगा। चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो, ब्लड अल्टीमेटली आरए में ही ज्यादा होना है, चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो। इंस्पायरेशन में तो डायरेक्टली राइट साइड पे ज्यादा हो जाएगा और एक्सपायरेशन में इनडायरेक्टली जो है वो लेफ्ट टू राइट शंटिंग ज्यादा होके हो जाएगा, अगेन ब्लड आपका राइट पे फिर ज्यादा हो जाएगा। तो P2 हमेशा डिले ही रहेगी, परमानेंटली डिले रहेगी। तो इसलिए चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो P2 हमेशा देर से ही बंद होगी। दैट इज द रीजन कि ASD में स्प्लिट वाइड एंड फिक्स्ड होता है, जबकि आप पल्मोनरी स्टेनोसिस की आरवीटी ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो वो इंस्पायरेशन पे और आगे जाएगा, लेकिन एक्सपायरेशन पे उसकी हीमोडायनामिक्स रिवर्स हो जाएंगी।
ASD में डायरेक्टली राइट साइड पे इनफ्लो ज्यादा है इंस्पायरेशन में, और एक्सपायरेशन में इनडायरेक्टली फिर ज्यादा है। तो इसलिए हमेशा ASD में एक वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग रहेगी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ये। अब इसमें एक और सवाल यहाँ बनता है कि इन्हीं तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए जो दूसरी चीज है वो ये है कि जब आपका वाल्व इन्वॉल्व होगा तो P2 की जो इंटेंसिटी है, जो P2 की आवाज है बंद होने की, वो वाल्व क्लोज होने से आ रही है ना, तो उसको सिर्फ तब फर्क पड़ेगा जब P2 वाल्व इन्वॉल्व होगा, पल्मनरी वाल्व इन्वॉल्व होगा। तो सिर्फ वाल्वुलर PS में P2 सॉफ्ट होगी, ना ही RVOT ऑब्स्ट्रक्शन में P2 को कुछ होगा, ना ही ASD में कुछ होगा। रादर यहाँ पे एक और डिफरेंस इसी में यहीं पे डिस्कस करने वाला है कि चूंकि PS और RVOT ऑब्स्ट्रक्शन में वाल्व की नैरोइंग है तो पल्मनरी हाइपरटेंशन नहीं होती। ASD में चूंकि सिर्फ राइट साइडेड फ्लो इंक्रीज्ड है तो अल्टीमेटली जाके पल्मनरी हाइपरटेंशन भी होगी, एंड रादर आपकी P2 लाउड हो सकती है लेटर ऑन जाके अगर ASD विद पल्मनरी हाइपरटेंशन हो जाए तो। सो दिस इज द डिफरेंस। अगर आप, जो आपका क्वेश्चन था, अगर इफ यू वांटेड टू नो द डिफरेंस ऑफ द साउंड्स, जो P2 के डिफरेंस की आप बात करें तो दैट इज द डिफरेंस। P2 of pulmonary stenosis will be soft क्योंकि valve involved है। RVOT obstruction में P2 will be absolutely normal. ASD में P2 may be normal and with time may get loud क्योंकि increased vasculature की वजह से जब pulmonary hypertension develop होगी तो it may get loud. This is the difference between pulmonary stenosis, RVOT obstruction and ASD. And there is one thing जो final बात है इसमें that is unique to pulmonary stenosis, उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया था इसकी वाल्व की कुछ मॉर्फोलॉजी ऐसी होती है कि वाल्व जिसके वो जो अगर तो प्लायबल हो तो फिर उसमें सिस्टोलिक क्लिक्स आ सकते हैं। तो वो एक चीज यूनिक है पल्मोनरी स्टेनोसिस। अगर आपको सिस्टली में छोटे छोटे क्लिक्स की आवाज आ रही हो ना, वो वाल्व्स की वजह से आ रही होती है, उसके लीफलेट्स की वजह से आ रही होती है। So that is something unique to pulmonary stenosis. That will not be the case of RVOT obstruction. That will not be the case of ASD. So these are the basic things that are different between all these three things. I hope I've clarified them all. And अगर ये चीज आप मतलब अपने माइंड में क्लियर रखते हैं ना, आपका कभी भी क्वेश्चन RVOT ऑब्स्ट्रक्शन का, BSD का, सॉरी PS का और ASD का गलत नहीं होगा। लेट्स टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आपको जाने से पहले लास्ट चीज जो क्लियर करूंगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन TOF एंड PS प्लस VSD। Okay, that's great. That's great. That will be a very, actually a very practical differential. और मैं इसमें वो ऐड भी करना चाह रहा हूँ साथ, इस सारे अभी जो डिस्कशन हुई है, दैट वाज आई मस्ट से दैट वाज अ वेरी एक्सीलेंट डिस्कशन। और वो जो है आपका नूनान सिंड्रोम के अंदर जो आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है थिक एंड वॉल्व होने की वजह से, उसके डिस्प्लास्टिक अंदर भी वो वाल्व क्लिक वाला जो उनसा है डिफरेंस है वो काम आता है वो नहीं आएगा। ना, वो नहीं आता उसमें, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए काम आएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैं आपको, आप यू आर ईगर के यार किसी को अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ ले। आई जस्ट वांट टू गो थ्रू द चैट बॉक्स। और जज़ाकल्लाह, एवरीथिंग इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन्ड। मुझे लगता है पार्टिसिपेंट्स को समझ आ गया। वेरी नाइसली एक्सप्लेन डॉक्टर आ दानिश गया। हमारे साथ। एंड डिफरेंस ऑफ PSR VOD एंड ASD, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा हो गया अगर आपको समझ आ गया तो। सो वी विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, murmurs like pulmonary stenosis, coarctation of aorta are so harsh and radiating to whole precordium mostly that they obscure first heart sound or second heart sound or sometimes both. So how to comment on first heart sound, second heart sound in such scenario? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड पे। देखें, अब बात ये है कि आपने एक चीज याद, मतलब इसको अपने एक प्रिंसिपल बना लें कि जब तक आपको एक स्टेप क्लियर नहीं हुआ आपने आगे नहीं जाना। प्लीज, जिस जिस मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली अर्ज करता हूँ और करता ही चला जाऊंगा जब जब मुझे मौका मिलेगा कि प्लीज डोंट जंप टू ऑस्कल्टेशन। आप शॉर्ट केस को प्लीज ऑब्जेक्टिवली तरीके से अप्रोच करें। एपेक्स बीट नहीं मिली, उसके पीछे पड़े ना, जाया करें 1-2 मिनट उस पर, आगे ना जाए। सिमिलरली फर्स्ट हार्ट साउंड है, आपने सुननी है नीचे माइट्रल एरिया पे और ट्राइकस्पिड एरिया पे, उसकी आवाज वहां आनी है। आप बेस पे फर्स्ट हार्ट साउंड ना ढूंढें,
ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कभी कभी हार्श मर्मर्स होते हैं, पूरे प्रिकॉर्डियम पे आ रहे होते हैं, लेकिन अंडर द हार्शेस्ट मर्मर्स कभी ऐसा नहीं होता कि आपको माइट्रल एरिया पे फर्स्ट हार्ट साउंड अच्छी ना सुनाई दे रही हो। या चलें अगर माइट्रल पे नहीं दे रही हो, ट्राइकस्पिड पे जाके ढूंढ लें, आपको नीचे फर्स्ट हार्ट साउंड अच्छी आ जाती है और आपने उस पे अपना कंसेंसस बनाना है आगे जाने से पहले कि फर्स्ट हार्ट साउंड कैसी है। देखें, इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर केस आगे आपको नहीं पता भी क्या है, आगे जा केस आ जाता है एमआर का, हो सकता है वो एमवीपी हो, आपको तो एमआर ही मिल रहा है ना, एमवीपी तो देखें कि उसका इसके एक सॉर्ट ऑफ कॉज है, तो उसकी तो उसमें ना जाए। और एमवीपी का लेट मी टेल यू केस आ सकता है एग्जाम में, और आ जाता होता है। और ऐसी कोई वो अनफेयर केस नहीं है, बड़ा इजीली पिकेबल है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है। एमवीपी हो सकता है हो। अब अगर आपने हो, या हो सकता है बड़ा कोई साइलेंट सा एमएस हो, अगर आपने फर्स्ट हार्ट साउंड पे डिसीजन नहीं लिया। अब मैं डिस्कशन नीचे इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट हार्ट साउंड इन्वॉल्व माइट्रल वाल्व के साथ है, इसलिए सॉरी डिस्कशन अब इधर आ गई। लेकिन अगर आपने फर्स्ट हार्ट साउंड पे डिसीजन नहीं लिया कि ये नॉर्मल है या ये सॉफ्ट है, या अगर एफएब है तो वेरिएबल है फॉर दैट मैटर, तो आपका अगला डायग्नोसिस गलत हो जाएगा। आपने अगर एमआर बना लिया, आपको सही मिल गया एमआर है एंटीरियरली डायरेक्टेड या पोस्टीरियरली डायरेक्टेड, हाउ एवर इज द केस, बट अगर आपने फर्स्ट हार्ट साउंड पे डिसीजन नहीं लिया कि ये सॉफ्ट है या ये नॉर्मल है या ये लाउड है, तो उसके साथ जो एमएस था, उसके साथ जो एमवीपी था, आप वो मिस कर जाएंगे। ऑस्कल्टेशन के पीछे, मरमर के पीछे ना भागे। हमेशा जो जिस स्टेप पे है उस पे डिसाइड करते चले जाएं। एपेक्स बीट देख लिया अपने माइंड में, उसको बिठा लें, बार बार आवाज आ रही होनी चाहिए एपेक्स बीट डिस्प्लेस है, एपेक्स बीट डिस्प्लेस्ड है, वो चीजें ढूंढो जो एपेक्स बीट डिस्प्लेस करती है। फर्स्ट हार्ट साउंड नॉर्मल है, एमआर बन भी रहा है तो ना बनाए, अगर बन रहा है तो साथ एमएस या एमवीपी को डालें या टेकिकार्डिया को डालें, उसको एक्सप्लेन करें। अगर फर्स्ट हार्ट साउंड सॉफ्ट है तो एमएस बनाने से पहले 100 दफा सोचें कि कहीं एमआर ही तो नहीं है। देखिए, हर चीज का आगे एक लिंक है, हर चीज का एक ताल्लुक है। अपने माइंड में पहला स्टेप क्लियर करेंगे, अगला स्टेप खुद इजी होके आएगा। तो बेशक जितना मर्जी हार्श मर्मर बेस का हो, आपको आपके जो एपिकल एरियाज हैं वहां पे फर्स्ट हार्ट साउंड इंशाल्लाह सुनाई देगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। Great. Next question is Dr. Avais है जी, वो पूछ रहे हैं how to differentiate subvalvular pulmonary stenosis murmur from VSD। I think ये end में हम डिस्कस करेंगे तो ये उसमें कवर अप हो जाएगा VSD और pulmonary stenosis। हो और जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक वो भी कवर हो जाएगा, how to differentiate clinically pulmonary stenosis with VSD from top other than cyanosin and देखिए, ये मैंने clubbing। तो इसीलिए ये भी पहले ही बता दी, मैंने डिस्कस करना है हाँ क्योंकि ये एक टॉपिक जो है ये बिल्कुल है, ठीक है, यही बिल्कुल यही ठीक है। काम की बातें हैं जो बेसिकली करने वाली हैं। Great, great. Any specific reason to consider peak gradient in pulmonary stenosis? नहीं नहीं, बेसिकली कोई खास ऐसी वजह नहीं है, मीन ग्रेडियंट्स भी हैं, जैसे सिवियर का उन्होंने दिया हुआ 35 है। अब जो आपका जैसे 64 से उन्होंने बाप दिया हुआ, साथ उन्होंने दिया हुआ कि उसका मीन ग्रेडियंट 35 भी है, बट दैट्स जस्ट हाउ इट इज। एक तो पीक ग्रेडियंट मेजर करना आसान है, एंड एक्चुअली प्रेफरेबल है कि गाइडलाइंस उसी में दी हुई हैं। सो आई डोंट थिंक, और प्लस वी डोंट रियली नो कि गाइडलाइंस उन्होंने ऐसी क्यों दी हैं। फॉर द सिवियर वन उन्होंने दी हुई है, मीन ग्रेडियंट भी 35 दिया हुआ है। Great, great. Uh, what do we find on M mode echo of pulmonary stenosis? एम मोड बेसिकली मोशन मोड को कहते हैं। उसमें हमें करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप डाल के देखेंगे तो आपको स्टेनोज्ड वाल्व की थोड़ी सी ओपनिंग है कि, वरना वाल्व्स के ऊपर व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू डू द डॉपलर स्टडीज। हम उसकी वाल्व की हीमोडायनामिक्स देखना चाहते हैं, हम उस पर CW डालना चाहते हैं, हम PW डालना चाहते हैं, हम उसका एरिया निकालना चाहते हैं। तो मोशन मोड इज नॉट रियली फॉर द वाल्व्स। Great. और अगर आप Uh, डाल भी देंगे तो उसमें आपको वही उसका एरिया थोड़ा सा तंग मिलेगा, जैसे I think in the coming webinars, we are planning to have an M mode session on echo. I have requested Dr. Khalil. So I think we will be having a special session only on M modes on echo. बिल्कुल ठीक है। Inshallah. खलील साहब तो एको चैंपियन है, जबरदस्त इंशाल्लाह सेशन होगा। हाँ ज़बरदस्त, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर शेव हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सैल्यूट टू बोथ लेजेंड्स। क्लिनिकली डिफरेंशिएट बिटवीन पीएस एंड टॉफ, ठीक है जी, हम अभी कर लेते हैं।
What is the best modality? What is the best modality we use in the diagnosis of pulmonary stenosis? Echo. Echo. Agreed. How to सारे वैल्वुलर differentiate? जो है वो बेस्ट आपकी echo ही है. Yes. How to differentiate it from top and ओके ठीक है जी. थैंक यू फॉर दी वंडरफुल टॉक. सही सिद्दीकुल हमारे साथ हैं. थैंक यू जी. ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ASD और परमिस्टोसिस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. आई होप आपने सुन लिया होगा. और ए साइनोटिक और साइनोटिक डॉफ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. When do you label balloon? Okay, the question is from Dr. Syed Siddiqullah. When do you label balloon valvuloplasty for pulmonary stenosis as successful? कोई क्राइटेरिया है सर इसका? अच्छा, उसमें क्राइटेरिया जो है वो किसी गाइडलाइंस वगैरह में तो नहीं दिया हुआ. उसमें एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि प्रेशर जो है वो तकरीबन 25 से उन्होंने लिखा हुआ था कि कम हो जाते हैं. तो हम उसको जनरली उन्होंने लिखा हुआ था कि वैल्वुलोप्लास्टी के बाद जनरली प्रेशर्स फॉल हो के बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, 25 से नीचे चले जाते हैं. तो ये है कि इट्स सक्सेस का कोई क्राइटेरिया किसी गाइडलाइंस वगैरह में तो मुझे नहीं मिला कि डॉक्यूमेंटेड, जैसे कि हमारे पास माइटल स्टेनोसिस की PTM सक्सेसफुल क्राइटेरियाज हैं कि दिया हुआ है कि कोई MR ना हो और इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं कि PR ना हो. आई लुक मतलब किसी भी लिटरेचर में तो नहीं दिया हुआ, बट वी वुड अज्यूम इज अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर पूछ ही ले तो उसमें आई थिंक द वे टू गो इज के प्रेशर ग्रेडियंट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएं, डेफिनेटली सिवियर से हट के एटलीस्ट माइल्ड मॉडरेट जोन के अंदर चले जाएं, और PR ना डेवलप हो सिग्निफिकेंट. बट ये कि आई डिडंट कम अक्रॉस एनी सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल सक्सेस क्राइटेरिया, मतलब जैसे वो PTMC का दिया हुआ है. ओके. बट डॉक्टर लॉजिकली ये मोहम्मद, बनता है. सही. डॉक्टर मोहम्मद कासिम पूछ रहे हैं, doesn't PS murmur decreases with inspiration? आई थिंक ये तो फिर आप बता दें जरा, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का PS के मर्मर पर क्या इफेक्ट है? अच्छा, कोई भी जो फिक्स्ड आपकी ग्रेडियंट्स है ना, जो वैल्वुलर हैं, आप चाहे ऑर्टिक देख लें या पल्मनरी देख लें या किसी भी देख लें, मतलब अब ये चीज़ हमेशा एक ऐसे रूल ऑफ थंब मैंने याद की हुई है, जब भी फ्लो इंक्रीज होगा ना तो फिक्स्ड वैल्व से मरमर बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेडियंट बढ़ जाएगा ना आगे और पीछे में. और यही इसका ऑपोजिट डायनामिक में होता है, जैसे हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में कि जब मतलब आपकी प्रीलोड बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली उसकी वजह से मरमर कम हो जाएगा. सो लाइक फॉर PS, जब प्रीलोड बढ़ जाएगा, इंस्पायरेशन होगी तो प्रीलोड बढ़ जाएगा राइट साइड पे, तो वैल्व का उसकी ऑब्वियसली ग्रेडियंट बढ़ जाएगा तो मर्मर बढ़ जाएगा. और अगर आप वैसे ही थोड़ा सा अगर रिकॉल करें अपनी वैसी जो मेमोरी में जो आदत बनी हुई है, तो आप कहते भी यही हैं कि PS इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज देयर इज एन इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर radiating to the neck that increases with inspiration. एक वैसी चीज याद की है, तो अगर आप याद करें तो ये उसमें फॉल भी हो रहा है. और लॉजिक मैंने आपको इसकी समझा दी कि जब इंस्पायरेशन हो गई तो राइट साइड प्रीलोड बढ़ जाएगा, ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, मर्मर बढ़ जाएगा. ओके. और यही आप आई एम श्योर कि अपनी नॉर्मल एग्जाम रूटीन में कह भी यही रहे होंगे. बिल्कुल ठीक हो गया. डॉक्टर गुलजमान का कमेंट है जी आपके लिए, कह रहे हैं हेलो नूर एंड हसीब द ग्रेट, कीप इट अप बॉयज. थैंक यू जनाब. थैंक यू. फॉर बीइंग देयर. बिल्कुल जी, बड़े फख्र की बात है, एक लेजेंड है डॉक्टर गुलजमान खान न्याजी. जो लोग इनको नहीं जानते, दे आर वेरी अनलकी that they have not come across the boy wonder, Dr. Gulzaman. He's very He's nice. one of those consultants जिनको आप कहते हैं ना कि ये बड़े होके मतलब they're going to cure cancer or something like that. So he's one of those. इनसे ज़्यादा ज़हीन आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा. He is like that. MashaAllah. He is very nice, very nice. Dr. Nasir Ali है जी. See by the great wonderful presentation. Thank you for time. Thank you जी आपका. Dr. Madhiya Ilyas हैं जी, और she is asking question although it is not related to today's topic, but sir question है, why apical area is considered as mitral area as what we see in the echo
Mitral valve is away from the left ventricle apex. डॉक्टर मदिया, आपसे किसी मुश्किल सवाल की उम्मीद ही होती है। आपका सवाल आता है ना तो थोड़ी सी वैसे एंक्शियसनेस होना स्टार्ट हो जाती है कि आपने क्या पूछ लेना है। देखें, बेसिकली आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब तो ना कभी पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ कि एपिकल एरिया को माइट्रल एरिया क्यों कहते हैं। शायद उसकी कुछ लोकेशन इसी तरह से ही है। एको अगर आप वैसे छोड़ दें तो माइट्रल वाल्व की जो शायद रेडिएशन है नियरेस्ट, वो शायद उसी जगह पे ही है। बाकी सवाल आपका बहुत अच्छा है। आई विल लुक इनटू इट एंड गेट बैक टू यू। आई थिंक द आंसर आपने दे दिया है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी किसी भी वॉल्व के क्लोज होने की वजह से जिस एरिया में आती थी ना, सुनाई देती थी, तो उन्होंने उसको उससे मंसूब कर दिया। इसलिए वो कहते हैं कि जी आप माइटल एरिया में फर्स्ट हार्ट पे कमेंट करें और ऊपर एओर्टिक एरिया में आप माइटल वॉल्व की क्लोजर को आप भूल जाएं और वहाँ पे जाके कमेंट ना करें कि यहाँ पर मुझे उसकी भी सुनाई दे रही है। तो जिस वॉल्व की जहाँ पे सबसे अच्छी सुनाई देती थी वही रेडिएशन वाली बात, उन्होंने उसको उससे मंसूब कर दिया और माइटल को माइटल और ट्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड। इट इज़ नॉट लाइक कि जहाँ माइटल एरिया है उसके बिल्कुल नीचे माइटल वॉल्व पड़ा हुआ है और जहाँ ट्राइकस्पिड एरिया है उसके बिल्कुल नीचे ट्राइकस्पिड है। अगर आप एओर्टा को भी देख ले तो वो भी उसके बिल्कुल नीचे नहीं है। Actually, it is where the maximum audible sound is heard through the stethoscope. चलें जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मजीद सर्च करेंगे बाकी इसके ऊपर। बाकी ज़ेन तो यही कहता है, लेकिन पढ़ने का इत्तेफाक वाकई नहीं हुआ। तो आई लुक इनटू इट। बिल्कुल। How we calculate, डॉक्टर खालिद से नाम है जी मुल्तान से, how we calculate balloon size in pulmonary stenosis? बैलून वैल्वुलोप्लास्टी करते हैं तो कोई है आइडिया कि pulmonary stenosis के लिए अच्छा, बलून balloon वैल्वुलोप्लास्टी size? या पल्मोनरी वाल्व की करने का इत्तेफाक भी नहीं हुआ, तो प्रैक्टिकली भी नहीं पता। और किसी बुक में आपकी जो गाइडलाइंस हैं और पल्मोनरी स्टेनोसिस जितना भी लिटरेचर है आपकी एग्जाम से रिलेटेड, किसी जगह पे भी नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए मैं आपको दोनों तरह से हेल्प नहीं कर सकता इसमें। इट्स नीदर गिवन इन द लिटरेचर, so we'll have to look specifically for it. Obviously pulmonary valve intervention हो रही है, I have not had the chance to do it yet, तो इसलिए आई डोंट नो प्रैक्टिकली भी Okay, और थियोरेटिकली भी नहीं है। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस, आई विल नोट इट डाउन, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। great, great. और पल्मोनरी स्टेनोसिस की जो क्लासिफिकेशन है कैथ प्रेशर ग्रेडियंट्स पे, उसका भी उन्होंने पूछा कि अगर कोई आइडिया हो तो वो भी बता दें, कोई अच्छा, कट ऑफ उसमें वैल्यूज हों कोई। मैं, हाँ, ये दिस इज वन थिंग। पहली बात है कि पल्मोनरी स्टेनोसिस का डायग्नोसिस आपने कैथ वैल्यूज पे करना नहीं है। इट्स नॉट रिकमेंडेड टू डू इट। इट्स ओनली कि आप इसकी कोई क्लासिफिकेशन कैथ से रिलेटेड है भी नहीं। आपकी जो क्लासिफिकेशन है प्रेशर ग्रेडियंट्स की दी हुई है, जो कि आप एको पे बहुत अच्छी तरह निकाल सकते हैं। दिस एक्चुअली नो नीड टू पुट दैट पर्सन थ्रू द कैथ जस्ट फॉर दीज डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस। उसमें सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि आप पल्मोनरी आर्टरी में जाके एक जब आप कैथेटर लेके गए हुए हैं तो आप वहाँ पे ग्रेड ले लें प्रेशर, और उसको पुल बैक करके साथ ही जो है आरवीओटी में ला रहे हैं और देख लें कि आपका ग्रेडियंट कितना बनता है और प्रेशर डिफरेंस आपका कितना ज़्यादा है, and that will probably follow the same values that we've considered in echo. So there's actually no classification of cath, and actually it's a class 3 recommendation to do a cath for the diagnosis and categorization of pulmonary stenosis. It's only recommended jahan pe you have a mismatch in your echo and your clinical findings. मतलब आपकी echo कहती है कि pulmonary stenosis है ही नहीं और आपको बड़ा पक्का लग रहा है कि pulmonary stenosis है, तो फिर कैथ कैन प्रोबेबली जस्ट एड यू इन द फैक्ट कि प्रेशर ग्रेडियंट है कि नहीं है, एंड जस्ट दैट। तो देयर इज नो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैथ्स। ओके, मेरे ख्याल में अब वो बात हो जाए टॉफ की और वो वीएसटी और पीएस वाली और ए साइनोटिक टॉफ और ये सारे डिफरेंशियल्स जो बिल्कुल आप ठीक है। एंड के लिए रखा हुआ था। राइट, सो हाँ जी बिल्कुल। सो वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग द 1 hour 20 minute मार्क। मुझे एक्चुअली उम्मीद नहीं थी कि टॉपिक इतना डिले हो जाएगा, तो बट ये कि दैट्स गुड। तो लास्ट 10 minutes में लेट्स डू दैट डिस्कशन। दैट्स अ कॉमन टॉपिक। हाँ, पीएस का केस इतना आता है या नहीं आता, टॉफ का केस आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आ सकता है, क्योंकि there are a lot of unfortunately the cases of tetralogy, and unlike TGA they are surviving, and we do tend to have TOF patients quite rather frequently in the exam. So obviously अब उसमें आपको we getting sort of similar findings, तो थोड़ा सा clarify करना ज़रूरी है कि TOF है या PS with VST है। क्योंकि अगर आप टॉफ के बाकी दो कंपोनेंट्स देखें तो देखें, द थर्ड थिंग इज आरवीएच।
वो तो आपको पीएस में भी मिल जाएगा। तो तीन चीजें सेम हो गई। ओवर राइटिंग ऑफ द एओर्टा का किसी को पता नहीं चलना, इट्स समथिंग दैट्स टू डू विद द इमेजिंग, तो क्लिनिकली उसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। तो असेंशियली क्लिनिकली देखा जाए तो दे आर एब्सोल्युटली द सेम। अब उसमें डिफरेंस क्या है, हाउ डू वी डिफरेंशिएट कि ये पीएस है और बीएसटी है, और मैं इसी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ टॉफ को पीएस से डिफरेंशिएट करना कोई मुश्किल नहीं है। आपका टॉफ के पेशेंट्स रादर काफ़ी डिफरेंट होते हैं, बाकी फाइंडिंग्स भी डिफरेंट होती हैं। इट्स जस्ट के बीएसटी और पीएस इकट्ठे जब आ जाए तो उसको टॉफ से कैसे डिफरेंशिएट करना है। एंड बीएसटी और पीएस इकट्ठे आने की फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, because like I told you कि PS is more related to congenital heart disease rather than rheumatic ना। हम एक this is like a rule of thumb I always teach all my students कि आप ये याद रखें कि अगर आप rheumatic का केस बना रहे हैं तो उसमें ज़बरदस्ती congenital ना घुसाएं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल MS विद ASD जो आपका ल्यूटेन बेकर है, आपको जितना मर्जी पसंद हो, खुदा का वास्ता है अपने आप को रिफ्रेन कीजिएगा। अगर ल्यूटेन बेकर एग्जाम में आ भी गया तो आपने उसको ल्यूटेन बेकर नहीं कहना, आप उसको MS बना लें, ASD बना लें, ल्यूटेन बेकर बनाएंगे आप फेल हो जाएंगे। ये एक इंतहाई रेयर फिनोमेना है कि एक तो ल्यूटेन बेकर इटसेल्फ एक इंतहाई रेयर फिनोमेना। वैसे भी कंजेनिटल और रूमेटिक होना भी एक पर्सन के लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि पहले उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज थी, बाद में उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज होगी। रूमेटिक वाले के लिए तो ठीक है, उसका चाहे माइट्रल इन्वॉल्व हो गया, चाहे ऑटिक हो गया, ट्राइकस्पिड हो गया, तो सारे वैल्व हो सकते हैं, आप उसको एक में ही रखें। किसी ASD VSD वाले को साथ MS भी हो गया एंड ऑल दैट, तो ये चीज़ें थोड़ी सी रेयर होती जाती हैं। आपने कोशिश हमेशा यही करनी है कि डायग्नोसिस को एक चीज़ में एक्सप्लेन करें। रूमेटिक बना रहे हैं तो रूमेटिक ही बनाते रहें, कंजेनिटल बना रहे हैं कंजेनिटल बनाते रहें। मिक्स करने में बड़ा ध्यान से हो सकता है, कोई एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है, किसी को कंजेनिटल तो उसको रूमेटिक भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़रा कम हो जाती है कि एक ही बंदे को सारा कुछ हो जाए ना। तो लाइक आई टोल्ड यू कि PS एक कंजेनिटल में आता है, इसको बस आप कंजेनिटल हार्ट डिजीज ही समझें, तो इसलिए ये VSD के साथ आने की चांसेस है। अब डिफरेंस क्या है, एक चीज़ आपका जहन में रखना बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसरी है, यही आपको हमेशा हेल्प करेगी कि टॉफ एक साइनोटिक हार्ट डिजीज है। अब यहाँ पे पिंक टॉफ्स और वो सारे क्वेश्चंस ना लेगा, क्योंकि ज़ाहिर है हर ये जो मैं बेसिक अब आपको बताने लगा, दिस इज फॉर द क्लासिकल टॉफ। पिंक टॉफ की क्या डिफरेंसेस हैं, दैट कैन बी टॉपिक फॉर अनदर डे। या चलें, अगर हुआ तो वी कैन डिस्कस इट एट द एंड एज वेल, बट ये है कि लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द डिस्कशन। सो हम टॉफ जो बेसिक है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि हाउ इज दैट गोइंग टू डिफरेंशिएट फ्रॉम VS एंड BSD, VSD एंड PS। तो टॉफ के अंदर एसेंशियली आपको ये याद रखना है कि टॉफ एक साइनोटिक हार्ट डिजीज है, और दैट इज द की टू रिमेम्बरिंग इट। साइनोटिक क्यों है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है, बस ये याद रखना है आपको, ये नहीं भूलना। जब भी कंफ्यूजन हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, अभी आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन जब भी प्रॉब्लम हो ये चीज आपको हमेशा जो अपने द फैक्ट है वेर यू ऑलवेज हैव टू गो बैक टू इज के टॉफ एक साइनोटिक हार्ट डिजीज है, और साइनोटिक इसी वजह से है कि राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है। ठीक है, just take 1 minute and absorb this fact. I know you know it, but absorb it in your mind. Right. अब चूंकि राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है ना, तो वो बड़ी एक मुश्किल फिनोमेना है। अगर आपने किसी ने भी थोड़ा सा इसकी हीमोडायनामिक्स को स्टडी किया है, आपने कैथ लैब्स में गए हैं, आप एकोज में गए हैं, आपने मतलब बुक भी डिटेल में पढ़ी है, तो यू नो कि LV के प्रेशर्स बहुत हाई होते हैं और RV के प्रेशर्स बहुत कम होते हैं। तो RV का प्रेशर सुप्रा सिस्टेमिक होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल बात है, और कभी भी फिर इतना डिफरेंस नहीं होगा कि ऐसा शोर शराबा हो जैसे लेफ्ट टू राइट VSD का होता है ना, कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है लेफ्ट पे, राइट का थोड़ा सा होता है। तो VSDs जो खासतौर पे छोटे होते हैं, जिनमें इतना हीमोडायनामिक फर्क नहीं होता, तो लेफ्ट का प्रेशर बहुत हाई है, राइट का प्रेशर बहुत कम है। तो जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, मरमर उतना ही ऊंचा होगा। तो जितना छोटा VSD होगा उतना ही ऊंचा मरमर होगा। अब राइट साइड के प्रेशर्स बढ़ते 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 बढ़ते
जाहिर है क्योंकि आगे से बिल्कुल आरवी बंद है, वीएसडी बहुत बड़ा सारा है, तो यही होता है कि राइट साइड के प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, बढ़ के फ्लो राइट टू लेफ्ट आना स्टार्ट हो जाता है, तो सारा साइनोटिक ब्लड लेफ्ट साइड पे आता है, वही बॉडी पंप कर देती है लेफ्ट साइड, तो पेशेंट ब्लू हो जाता है, साइनोटिक हो जाता है। लेकिन ये प्रेशर्स कभी भी इतने हाई नहीं होंगे कि आपको इसका शोर आना शुरू हो जाए। बस ये याद रखना है कॉन्सेप्ट कि इसीलिए टॉफ में कभी भी वीएसडी का मरमर नहीं होगा। टॉफ में वीएसडी का मरमर नहीं होगा। हमेशा वो मर्मर जितना भी आपको आवाज़ आ रही है ना, वो आरवी ओटी ऑब्स्ट्रक्शन का है। और जैसे कि आप में से किसी ने कहा, और बिल्कुल ऐसा ही है, कि बड़ा हार्श सा मर्मर होता है क्योंकि स्टेनोसिस बहुत ज़्यादा होता है, आरवीएच हुआ हुआ होता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट बहुत क्रिएट हुआ हुआ होता है ना, तो बड़ी जोर से आरवी प्रेस कर रहा होता है अगेंस्ट ए वेरी स्टेनोज्ड आरवी ओटी ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो बहुत जोर से एक मर्मर क्रिएट होता है जो कि आपको पूरे प्रिकॉर्डियम पे सुनाई दे रहा होता है, आपको लेफ्ट साइड पे भी सुनाई दे रहा होता है, नीचे भी दे रहा होता है। तो आपने उसको वीएसटी, अगर आपको लग भी रहा है ना वीएसटी, आपने केस आगे जाके टॉफ बनाना है, आपने वीएसडी का मरमर नहीं करना, आपने कहना है कि जी ये आरवीओटी का मरमर आ रहा है, मुझे हार्श इजेक्शन स्टॉलिंग मरमर आ रहा है which can be heard throughout the precordium. That is the scenario. Or obviously when you were inspecting, even if you're not expecting, अगर बड़े कभी कभी एग्जामिनर्स ने पेशेंट्स के हाथ छुपाए हुए होते हैं, पाँव छुपाए हुए होते हैं, आपने जब भी पल्स देखनी है, आपने जब भी ऑस्कल्टेशन करनी है, आपको जब भी आरवीओटी का मरमर या पल्मोनरी एरिया पे से हार्श मरमर आ रहा हो, आप जब लिटाया होता है ना पेशेंट को, चादर डाली होती है, तो ये बात याद रखिएगा कि फिर आपने उठा के बिठाना है पेशेंट को। जब उठा के बिठाएंगे, बेस फॉरवर्ड लीन फॉरवर्ड कराएंगे, बेस सुनेंगे, तो हाथ अपने हाथ में ना भी उठाएं तो उसकी नेल्स पे नज़र ज़रूर मार लें कि क्लबिंग है क्या। और इन पेशेंट्स को बड़ी ठीक ठाक क्लबिंग होती है, कि आपको बड़ी ऑब्वियसली एक नज़र में पता चल जाता है। और मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर्स ने बड़े स्पेसिफिकली पेशेंट्स की शीट हाथ पे कवर की हुई होती है, तो नहीं दिखाना, कभी कभी नहीं दिखाने देना चाहते आपको, लेकिन जब आप उसको बिठाएंगे तो जाहिर है पेशेंट देखे ना अपने हाथ पीछे रखेगा, रख के उठेगा ना, तो हाथ शीट से बाहर आएंगे। आपने ये नहीं है, उन्होंने लिखा होगा कभी कभी कि आपने सिर्फ ऑस्कल्टेट करना है, दे वांट टू टेस्ट इट, दे वांट टू सी यू। सो आपने उसका हाथ उठाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे कि हमने तो ऑस्कल्टेट का, आप हाथ क्यों एग्जामिन कर रहे हैं। आपने सिर्फ जब हाथ पीछे होंगे तो आपने नेल्स पे नजर डालनी है। देयर विल बी क्लबिंग, क्लबिंग बहुत ऑब्वियस होती है इन पेशेंट्स में, क्योंकि बचपन से साइनोटिक होते हैं ना, इतना साइनोटिक ब्लड जा 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 के क्लबिंग हो जाती है, और इस जब तक आपके पास पेशेंट आते हैं ठीक ठाक क्लब होते हैं पेशेंट्स। So you see the bluish tinge on their skin, you see the clubbed nails, you have the RVOT murmur, you want to make it off. अब एज अपोज टू कि आपने सुना, आपको हार्श इजेक्शन स्टॉलिक मर्मर तो मिल रहा है, यू थिंक इट माइट बी पीएस, इट माइट बी आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन, बट पेशेंट को कोई साइनोसिस नहीं है, कोई क्लबिंग नहीं है, आपको वीएसडी का मर्मर जो है अगेन अलहदा से मिल रहा है, यूर श्योर कि ये डिफरेंट मर्मर्स हैं, तो उसमें आपने, और मे बी आपको क्लिक मिल रही है, मे बी आपको P2 सॉफ्ट मिल रही है, और ये चीज़ आप याद रखें, आपको ऑलरेडी आपके माइंड में है कि आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन में कोई P2 को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वैल तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो P2 तो नॉर्मल ही रहेगी। लेकिन इसमें आपको P2 सॉफ्ट मिल रही है, कुछ छोटे छोटे जैसे क्लिक्स भी मिल रहे हैं, यूर फाइंडिंग थिंग्स जो कि आपको PS की तरफ लेके जा रही हैं, साथ आपको VSD की जगह भी मर्मर मिल रहा है। इसमें भी आपने याद रखना है कि आपने यही कहना है, आपसे फिर वो पूछेंगे कि डॉक्टर साहब कितना को है इसको आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन, और कितनी को है इसको, कितना को बड़ा वीएसटी आपके ख्याल में, तो आपने यही कहना है कि सर मोस्ट लाइकली दोनों चीज़ें मॉडरेट हैं, क्योंकि अगेन वही बात है कि अगर तो पीएस सिवियर हो जाएगा और आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर राइट टू लेफ्ट शंटिंग का चांस बढ़ जाएगा और वीएसडी का मर्मर ऑब्स्क्योर हो जाएगा। अगर तो आपने पीएस और वीएसडी दोनों का मर्मर बनाना है, तो दे मस्ट बी समवेयर अराउंड मॉडरेट इंटेंसिटी, सर पीएस भी मॉडरेट ही मोस्ट लाइकली होगा और वीएसडी भी है, तो इसलिए मुझे वीएसडी का मर्मर भी आ रहा है जो कि बड़ा क्लियरली लेफ्ट टू राइट मुझे मिल रहा है रेडिएट होता हुआ, एंड जो मुझे पल्मोनरी एरिया पे मर्मर मिल रहा है उसके साथ P2 सॉफ्ट है, आई कैन हियर अ सिस्टोलिक क्लिक, दैट्स मोस्ट लाइक देयर इज नो साइनोसिस, देयर इज नो क्लबिंग, so most likely my diagnosis is pulmonary stenosis and VSD. आपने जब पहली दफ़ा डायग्नोसिस बनाएंगे तो ये मॉडरेट शॉर्ट कमेंट नहीं करना, एग्जामिनर पूछेगा तो बताएं
फिर वही बात कहूँगा, रीइटरेट करूँगा, जितनी दफ़ा पूछेंगे उतनी दफ़ा बताऊँगा कि चौके छक्के नहीं मारने, एक्स्ट्रा नहीं बताना, मौका दें एग्जामिनर को पूछने का, पूछेगा बताया, नहीं पूछेगा कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलता. I hope I've clarified the difference of these two things and how you approach this case and how you differentiate them. वेरी नाइस डॉक्टर नूर. और डॉक्टर हमाद शाह का आपके लिए कमेंट भी है कि जी गुरु टिप, तो वाकई ये गुरु टिप है और इसको अगर आप अपने ध्यान में रखें और उसको बस रिफ्लेक्स बनाना है. नहीं, ये तो साइड लाइफ के लिए टिप है एक्चुअली, तो ऑनेस्ट बात है. With this, I will conclude today's session, and I will thank Dr. Noor once again for being here from my side and from the participants as well. Dr. Noor, if you still want to say something, you have 2 minutes. सर आई थिंक कि मुझे तो लग रहा था कि 5 मिनट पे शायद 20-25 मिनट से ज़्यादा बात करने को नहीं मिलेगी. I'm actually considering it a success कि I've completed 1.5 hours on PS. So I hope that everybody's learned something and बाकी वो उसका जो valvuloplasty के लिए balloon का size है, I'll look into it and if I find any thing, क्योंकि होगी obviously because वो कर तो रहे हैं and हो तो रही है, so I'll get back to you. तो you can post it on the internet, तो फिर सब लोग they can review it on the forum. Great. Thank you so much once again. Thank you, Hainun Pharma, and special thanks to Professor Zubair sir for being there. So, inshallah, we will meet in the next webinar on another short case. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz. Yes.